जिक्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ महकता हूँ। हमारे पास है वहाँ पर कोई रोके ना तो कहना पी आर ओ साहब ठीक है BC लॉज के जाना BC लॉज पहुँचेंगे अरे बारिश तो हुई काफ़ी ना Out you.
رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله سبك گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما قرآن کریم کی جو کچھ تلاوت ہوئی یا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ مرحومہ کو پہنچا خاص طور پر سر سید علیہ الرحمہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ان کی زوجات کو بلند فرما ان کے قبروں کو نور سے منور فرما انہوں نے جو قوم ملت کے لیے خدمت کی ہے یا اللہ اس کا بہترین اجر اور مدہ نصیب فرما ان کے اس لگائے ہوئے چمن کو یا اللہ سر سب مشاہدہ مغابات فرما ترقیات عطا فرما ہر طرح کے فتنوں سے شروع سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ سر سید علیہ الرحمہ کا جو خواب تھا اس ادارے کے سلسلے میں یا اللہ اس کو شرمندہ تعبیر فرما یا اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو قوم ملت کے جذبے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یہاں کے ملازمین یا اللہ امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے یا اللہ مخلص اور خیر خواہ اقتدام کا انتظام فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ آخر کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما اپنی خشیت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ اپنے رسول کی محبت ہم سب کو نصیب فرما رسول کی اتباع ہم سب کو اختیار فرما یا اللہ اللہ سے अभी आप आ गए आप लोग कैमरे वाले ज़रा इधर आए ताकि इधर स्पेस हो जाए। अब इधर आ जाइए आप लोग इधर आ जाइए ज़रा सब प्लीज़। थोड़ा सा हल्का सा आगे से। اللهم رب العالمين وكل صلاة ربنا اغفر لنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ آج بانی درسگاہ بابائے قوم سر سید علیہ الرحمہ کے مزار پہ ہم سب حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تو اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو میرے ملک عظیم ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بین الاقوامی سطح پر مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
मौसम अच्छा हो गया। खाली आप शेरवानी लेकिन वो 10 साल का ऐसा था यहाँ नमाज पढ़ते थे, इतनी मोहब्बत तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ सर नमाज नहीं बनाया भी उन्होंने आइए सर। अच्छा बारिश बात के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का ताउन और कोऑपरेशन जैसे मिलता रहा है जैसे मिलता रहे और यूनिवर्सिटी में अमन चैन करना आप एक ग्रुप हो, आप आ जाओ प्लीज। हाँ हाउस नहीं होता था बारिश की वजह से। मौसम सही है। भाई हमें भी लेंगे ना है ना मेरी दादा के साथ चालीस लगी हुई है लड़कियों की
तू तो कुछ भी ना चले गए सब रात के भी आ गए 12:30 बजे के। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो मिला था 10:30 बजे जाएंगे हम बहुत सी अच्छी चीज़ें बना भी नहीं पाते हैं बिकॉज दैट मैनेज
जैसे अब नाना की किताब उसको उन्होंने ये किया लेकिन नाना पर जैसे लड़कों का एक हंगामा आया तो उनकी पूरी काटें खा रहे थे कौन सी दस्तरखान पर ये उन्होंने 3 अलग अलग जगह जो उसके बाद लोग उसको
नहीं इतना कुछ नहीं होने का मतलब ये क्यों है आपके सेंटर की जी सर हमारे सर्टिफिकेट लिए मास्टर लिए सर्टिफिकेट की लड़कियों ने आई थी हमारे यहाँ है रिटर्न में हाथ से भी बताते हैं कंप्यूटर ये हाथ की जी जी हाँ जी हाँ उसमें ये एक्स्ट्रा भी जी आपने यही मकाला सा सही छपवाया लाहौर से शेरवानी ये हैदराबाद का उसका बाद ये हैदराबाद के कुर्बानी ग्राउंड में वो और वो ये जामा बात और कीमती कपड़ा है अलग हो गया Essa cena é raspinha,
इसको अगर शीशा निकालते हैं मतलब देखो डेढ़ शीशा देखो ऐसा है इसको खींच के दोबारा से बनाएंगे डॉक्टर साहब के पास ये इंतजाम जो बताइए ये कौन है ये वो जो ऑडियो ये वहाँ से वो वाले से जाएंगे नहीं वो मैं असल में मेरा गाड़ी में रह गया बात नहीं सर इधर इधर हो जाए मिल जाए सब खड़े हो जाए ये गीत है हाँ आइए आइए आप इधर आइए इधर आके हाँ सर और भी ये देखिए सर ओके सर हाँ दिव्यानी सिंह अली वसी सैयद अरीफ अहमद नदीम गौहर मोहम्मद शमी मुबशिर रजा अब्दुल्ला रईस अली आमिर ताजवर हाथ मिलाओ गुलाबी ग्रुप फोटोग्राफ सर ग्रुप फोटोग्राफ स्क्वाड देखिए सामने देखिए सर रेडी ओके सर उसी गाड़ी में
अखाड़े उठा लो। आइए सर। हमारे बहुत से शामिल होने के लिए सेशन लाए हैं। बच्चियां जरूर तालियां बजाएं। मैडम फिरदौस रहमान पीछे हो जाओ, सब लोग आते जाओ, पीछे मुंह पीछे आ जाओ, पीछे बढ़ जाओ, आगे अच्छा सर, अब आगे आइए, जगह तमाम बढ़ दे यार, पीछे पत्थर को पीछे हो जाइए, बच्चों पीछे हो जाएगा, बड़ी चल दिया है इस जंगल से अब फिजा का कारवां। 24 साल पुराना ये राइडिंग क्लब जो सर सैयद ने खुद अपने ज़माने में कायम किया था 1800
89 में इसके कोच इमरान खान शिबली, उमेर खान, यासिर हनफी सीनियर साथी, और इसमें आप दो बच्चियां देख रहे हैं, दिव्यानी सिंह और ताजवर हुमा। ये कैसा उठाते हैं, आप देखिए तालियां बजाकर इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे बच्चे। मोबाइल पीछे, मोबाइल पीछे, बीच में क्यों आ रहे हैं? जस्टिस अताउर रहमान, जनाब जस्टिस अताउर रहमान मसूदी साहब, हट जाइए यार प्लीज। की सफाई में पीछे हैं जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब, सरजमीन अलीगढ़ के गौची फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ फ्रांस, और जनाब संजीव सराफ साहब। संजीव सराफ की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं वाले। इस शानदार इज्तिमा में मुल्क के नामवर माहिर कानून और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सीनियर जज जनाब जस्टिस अताउर रहमान मसूदी साहब बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा है, जबकि नामवर माहिर तालीम और दियारे सर सैयद के माए नाज फर्जंद जामिया मिलिया के साबिक़ वाइस चांसलर जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब, रिटायर्ड IAS मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से जलवा अफरोज हैं। मिसेस लॉरेंस गॉटी इज ग्रेसिंग द शी इज अनदर स्टॉलवर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज फ्रॉम द लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर सूदी साहब, वाइस चांसलर AMU प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब, गेस्ट्स ऑफ ऑनर जनाब शाहिद मेहदी साहब, जनाब संजीव सराफ साहब एंड डॉक्टर लॉरेंस गुचे, रजिस्ट्रार AMU मिस्टर मोहम्मद इमरान, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर मोहम्मद अलीम, members of the Executive Council, AMU Court, retired teachers, faculty, staff, students, AMU alumni and alumni, including those joining us online on the webcast, media personnel, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to the Aligarh Muslim University's Founders Day commemoration celebrations from the Gulistan-e-Syed here on the 17th day of October 2023. आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से ईद अली की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये एक ऐसी ईद है जब दुनिया का हर अलीग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सर सैयद अलैहिर्रहमा को खिराज अकीदत पेश करता है। आज शक और विक्रम संवत पंचांग के अनुसार एक ऐसा दिन है जब शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और मुल्क हिंद में मैदान गंगो जमन की शामें खुशगवार हैं और शहर की धुंध में गुलाबी जाड़े की आमद है। ऐसे में चमन सर सैयद के असातिज़ा व असातिज़ात जो यहाँ के फूल भी हैं और बागबां भी, तलबा और तालिबात जो लिबास दिल के शहजादे और ज़र्री दौर की शहजादियाँ हैं, जो इस बज़्म में सागर भी तोड़ते हैं और तेगें भी खींचते हैं, जो इस बज़्म में दिल भी जोड़ते हैं और आँख भी बिछाते हैं, हम सब मिलकर मेहमानान गिरामी और तमाम हाज़रीन महफिल का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। To welcome this august gathering, our distinguished guests and the pan-global Ali community, I request AMU Registrar Mr. Mohammad Imran, IPS, to deliver the welcome address.
Honorable Chief Guest, Mr. Justice Ataur Rahman Masoodi, Vice Chancellor AMU Professor Mohammad Gulrez, Guests of Honor Janab Syed Shahid Mehdi Saab, Janab Sanjeev Saraf Saab, and Dr. Mrs. Lawrence Gautier, DSW Professor Mohammad Aleem Saab, officers of the university, members of the court and EC members, faculty members, staff, students, dear friends and friends from the media. Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to all of you on this momentous occasion of the Founders Day Commemoration Celebrations 2023. I feel privileged to be extending a welcome to all of you present. Today, we rededicate ourselves to the vision of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of this great seat of learning. His dream was to create a cradle of knowledge like the Oxbridge in the UK, and all of us today stand here as a living testament to that legacy of Sir Syed. We started this day with offering rich floral tributes to the memory of AMU's legendary founder. We are fortunate to have in our midst as Chief Guest Honorable Mr. Justice Ataur Rahman Masoodi from the Lucknow bench of the Allahabad High Court. As a legal luminary, he has been gracing the law faculty of AMU for moot courts, and his gracious support means a lot to us. I welcome our Chief Guest heartily and look forward to his erudite address in this ceremony. Despite his busy schedule, he has found time for us and is gracing the occasion. Thank you, sir. As guests of honor, we have been joined by men and women of letters from across the academia, leadership and literary pursuits. The Aligarh Muslim University does hold a special place in the heart of Mr. Syed Shahid Mehdi, former VC, Jamia Millia Islamia, and India's alternate permanent representative to the Food and Agriculture Organization of the United Nations at Rome. This is because this legendary personality is also an old boy of AMU. With his rich experience and expertise in academic leadership, his alma mater has enjoyed his support. I request your continued patronage and welcome you, sir. Although not an alumnus, but Mr. Sanjeev Saraf, founder of the Rekhta Foundation, has more than one attribute endearing to this university. Traditionally, we have been a beacon of Urdu culture and heritage. Mr. Saraf's seminal contribution to the promotion and preservation of this beautiful Indian language is truly unparalleled in post-independence India. Back in 2018, in a similar ceremony of the Founders Day commemoration celebrations, AMU witnessed the conferment of the National Sir Syed Excellence Award on Mr. Sanjeev Saraf. I congratulate him on the recognitions from all over the world for following his passion. Saraf Saab, we welcome you. Last but not the least, the ardent researcher of history and political science, Dr. Lawrence Gautier, currently at the Centre des Sciences Humaines, CSH, New Delhi, is acknowledged with a deep sense of appreciation for her presence. This university and its remarkable contributions to the history of the subcontinent has warranted genuine interest and academic inquiry from Dr. Gautier. Her excellent doctoral thesis, submitted to the University of Cambridge, substantially comprises a well-researched documentation of the subject Muslim universities and Indian Muslims. I extend a warm welcome to Dr. Lawrence Gautier. We have also been joined by eminent members of the court and the Executive Council. I welcome all of them as members of our extended family. Ladies and gentlemen, the galaxy of stars on the dais and off the dais, the august gathering among the audience and a wide array of the populace watching us on screen make for a memorable experience. I am sanguine that this ceremony, presided over by the Vice Chancellor of AMU, Professor Mohammad Gulrez, will be a cherished one. Under his leadership, we toil hard to practice as well as profess the ideals of our founder. I welcome Professor Gulrez and his team members, the Dean Students Welfare, Professor Abdul Aleem, Finance Officer, Professor Mohsin Khan, Controller of Exams, Professor Mujibullah Zubairi, Proctor, Professor Wasim Ali, Librarian, Professor Nishad Fatima Zadi, Members in Charges, OSDs, Principals of Colleges, Deans of 13 faculties, Chairpersons of Department of Studies, Directors of Centers, Provosts of Halls of Residence, Teaching faculty members, non-teaching staffs, retired teachers and students. Today we have with us some of our alumni too. Mr. Hassan Kamal has come all over the way from Atlanta in the United States. This event is being webcast for the worldwide Ali community, and regardless of the time or day or night, some of our old students have joined us online. I welcome all the AMU alumni to this special celebration. I also welcome the winners of the All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition. Thank you for coming to Aligarh from higher education institutions across the country. It is deeply gratifying to see that students from far and wide delve deep into the philosophy of Sir Syed and pick up the pen to express their thoughts on him. AMU students who have participated in the in-house student research convention will be felicitated by the Chief Guest and the Vice Chancellor today. I welcome all the winners present here and congratulate them on their success. I once again welcome the guests and all present and wish you all a very happy Sir Syed Day 2023.
and engaging, informative and heartwarming proceedings await us, not to forget the mention of the resounding culmination with the Tarana. May your endeavors be guided by the principles and values that have made our institution great. We must remember that we all have opportunities to be better versions of ourselves because of a great man, Sir Syed. Thank you and Jai Hind. ख़वातीन और हज़रात, तमाम अली कम्युनिटी एक बार फिर अपने दिलों को जोड़ने के लिए जमा हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ अपनी दिलकश, खूबसूरत और दिलफरेब इमारतों के लिए नहीं जानी जाती, ये अपने आला तरीन तालीमी मेयार के लिए भी जानी जाती है, और उससे ज़्यादा इसलिए जानी जाती है कि हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल, तरक्की और खुशहाली और मुल्क की तामीर नौ में अलीगढ़ के लोग अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। हज़ारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और PhDs हर साल निकलकर हिंदुस्तान की इस खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और इससे भी बढ़कर 35,000 से ज़्यादा तलबा और तालबात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुल्की और गैर मुल्की दुनिया के हर खित्ते से एक छत के अंदर जिस खूबसूरत प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं, वो सर सैयद के उस सेकुलर सोच को सबसे बड़ा खिराज अकीदत है। चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। सर सैयद की ये सोच हम फिर जिंदा करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, चूँकि इस वक्त एक तालिबा को सर सैयद को खिराज अकीदत पेश करना है, याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ख़वातीन किसी से पीछे नहीं रही हैं। बेगम वहीद जहाँ हों कि मुमताज़ जहाँ हों कि पद्मश्री इस्मत चुगताई हों कि पद्म भूषण कुर्रतुल-ऐन हैदर हों, सभी ने यहाँ पर अपना खूनी जिगर दिया है। और इससे बढ़कर हिंदुस्तान ने अभी जो हाल ही में चंद्रयान 3 पर इंतहाई कामयाब लैंडिंग की है, उस लैंडिंग में अलीगढ़ के मायना सपूतों का खून पसीना शामिल है। खुशबू मिर्ज़ा को कौन नहीं जानता, 2006 की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की गोल्ड मेडल टॉपर लड़की, जो अमरोहे के एक बहुत मुतवस्सित खानदान से आई, जिसके वालिद बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गए। चंद्रयान 1 की चेकआउट टीम की लीडर थी, जिसने चांद की सतह पर पानी की पॉसिबिलिटी का पता लगाया, और इसके बाद ये चंद्रयान 2 में भी शामिल नहीं। और इस वक्त शी इज़ रिमोट सेंसिंग एट द रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो एज ज्वाइंट डायरेक्टर। हमारी एक और होनहार तालिबा सोनाली जैन, AMU बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद में सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशन पर है, और चंद्रयान की कामयाबी में इनका खून पसीना शामिल है। हमारा एक सिटी का तालिब इल्म प्रियांशु, जिसने राजा महेंद्र प्रताप स्कूल +2 से +2 किया, बीटेक और एमटेक अलीगढ़ के जाकिर हुसैन कॉलेज से किया, 2017 से इसरो से मुंसलिक हैं। सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। आज हम चांद के ऊपर जो अपना परचम लहरा रहे हैं, इसमें अलीगढ़ का खून जिगर शामिल है, और अलीगढ़ की बच्चियों का तस्करा ये आने वाली हमारी तालिबा करेगी। सुमराना मुजफ्फर BSc केमिस्ट्री की फाइनल ईयर की तालिबा हैं। मैं इन तमाम लड़कियों की जानिब से सुमराना का इस्तकबाल करता हूँ, ये कहते हुए सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, आप कुछ और मत समझ लेना, चूड़ियाँ हैं कलाइयों में तो क्या, मुझको कमज़ोर मत समझ लेना। सुमराना मुजफ्फर। Janab Sanjeev Saraf, Dr. Lawrence Gautier, dignitaries, esteemed faculty members, distinguished alumni, my fellow students, and the entire elite fraternity. Assalamu alaikum and a very good morning. Being a proud student of Aligarh Muslim University, I take pleasure on being able to address an audience as distinguished as today on the 206th birth anniversary of an ardent reformer, philosopher, educationist, and a great visionary who carved a space for rationalist thought, who gave a new direction to education, and above all, the founder of our prestigious university, Sir Syed Ahmad Khan. Much has always been mentioned about his early life and journey, but I still cannot but proudly reiterate about his life and legacy again and again. One of the architects of modern India and the father of Muslim intellectual renaissance, Syed Ahmad Taqi bin Muttaqi, was born on 17th October 1817 in Delhi into a royal family. When the condition of the Muslims was at the lower ebb, there was a man who could have comfortably lived a luxurious life, but Sir Syed Ahmad Khan emerged as a beacon of enlightenment whose meteoric rise molded the destiny of the whole nation. Sir Syed Ahmad Khan was the only man
who strove for a single purpose: empowerment and emancipation of the Muslims, socially and educationally. Anxious to extricate his people from the meshes of medievalism and apathy, this Masiha of Muslim education wanted to reconcile modern scientific thought, as he firmly believed modern education was the panacea of all illness, and ignorance the mother of all trials and tribulations. Ladies and gentlemen, Sir Syed Ahmad Khan believed that English rule should be opposed and not English education. In his words, अंग्रेज हमारे दुश्मन होंगे, अंग्रेजी उलूम से दुश्मनी ठीक नहीं, अंग्रेजी सियासत हमारे लिए जहर है, अंग्रेजी उलूम से खतरा नहीं, मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है, मुखालफत का नहीं. But his journey was not easy. He was criticized, rebuked and condemned. But a man of unshakable determination and unwavering concentration, Sir Syed Ahmad Khan fiercely announced, ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा. Sir Syed did not move from his resolution. He put his best foot forward and stood tall, facing all the challenges, all the difficulties courageously. He brought the revival through Aligarh movement. He published several magazines like Aligarh Institute Gazette and Tehzeeb al-Akhlaq to awaken the people's consciousness on social and religious issues. In 1864, Sir Syed founded the Scientific Society in Ghazipur. He also opened a number of madrasas to propagate and popularize the gospel of modern Talim. This erudite scholar voluminously wrote on all subjects relating to the development of India. He wrote Persian with the same fluency with which he wrote Urdu. It would not be an exaggeration to call Sir Syed Ahmad Khan the father of Urdu, as he assured the dawn of a new era in the history of Urdu literature. It was Khan Bahadur's ability that acted as a propellant for reviving Urdu language as a whole. From Ain Akbari, Jam-e Jam, Asaru Sanadid, Asbab-e Bagawat-e Hind, Tasanif-e Ahmadiyya to the edition of Tuzuq-e Jahangiri, Sir Syed Ahmad Khan proved his versatility in every sphere of expertise. Being a woman, I take pride in saying that Sir Syed Ahmad Khan was a strong supporter of women's right to education. He lamented the customs by which the women of India were left behind in ignorance. The unabating efforts of Sir Syed Ahmad Khan culminated in the establishment of the first modernist institute of Islam, Mohammedan Anglo-Oriental College, in 1875 on the pattern of Oxford and Cambridge University. With these words on the lips of Lord Lytton, an epoch of social progress in India. This college later grew into a renowned public university, Aligarh Muslim University, in 1920. Jawad-ud-Dawla Arif Jung, Sir Syed Ahmad Khan's legacy extends far beyond the walls of the institutions he founded or the books he wrote. His ideas and vision laid the groundwork for a more enlightened, a more inclusive India. His enduring contributions have left an indelible mark on time, as his works bridge the gap between modernity and tradition. Aligarh Muslim University stands as a testament to his vision. AMU is not merely an educational institute. It is an abr, a symbol of educational empowerment that has given innumerable gems to the nation, like Dr. Zakir Hussain, Salim Ali, Ismat Chugtai, and many more. Even today, AMU continues to be a hub of academic excellence. The 81 years of Sir Syed Ahmad Khan's life, when the world witnessed the transition of medievalism to modernity, was indeed a remarkable phase in the history of India. His perseverance, sagacity, and fervent patriotism mark him out as one of the greatest men of all times. The whole world will not see the like of him, perhaps for centuries. What Sir Syed wrote or did 150 years ago continues to hold true even today. By following his path, our community may overcome the challenges we face today.
Today, on this momentous occasion of Eid-e-Alik, let's not only pay homage to his heroic and tremendous achievements, but also resolve to embracing the ideas he stood for. I wish we hold and carry forward the flames of vision and motivation of Sir Syed Ahmad Khan. He has done his part beautifully, and now it's our turn to take the campus walls sky high from where the whole world can be seen. I would like to conclude by reiterating the words of Mijaz. जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा. A very happy 17th October everyone. Thank you very much. Bring your voice to the cause of women education in this articulate speech. Ladies and gentlemen, before I move on, please join me in extending a heartfelt welcome to Miss Shehzade Aleem. She has joined us just now. We are very privileged to have you with us, Shehzada Appa. She is the great granddaughter of Sir Syed Ahmad Khan, the granddaughter of Sir Rasmus Sood, former Vice Chancellor of this university. Shehzada Appa, हमारी दुआ है कि आपका साया तादेर हम पर बना रहे और अल्लाह आपको सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती से नवाजे. Ladies and gentlemen, as Sumrana rightly said, Sir Syed would have been really proud of our girls, given his own thoughts on women education and empowerment. When he met the polyglot of a French sales girl in Marseille, France, on his way to Dover Port, and when he met Miss Carpenter, again on his way to Dover Port on the Baroda steamer, and when he saw his housekeeper spending half a dime a day on reading a newspaper, he expressed his appreciation in his writings. Well done to the AMU girls, the students, Talibat, Muslim University Aligarh. And now it is my privilege to invite a student from the BTech Electrical Engineering for his Urdu speech. ख़वातीन व हज़रात, हम सब ये जानते हैं कि सर सैयद अलैहिर्रहमा के इस कॉलेज जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इस इदारे के लिए, इनके तलबा के लिए कुछ देरीना ख्वाब थे. And these were the dreams of modern scientific technological education, which he saw as the way forward to progress and to glory. I will request Fahim Ahmed for his speech in Urdu representing the AMU students. जिसके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए. हिंदुस्तान को 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त मिल चुकी थी. आम हिंदुस्तानियों के हौसले पस्त हो चुके थे, दिलों में खामोशी थी, आंखों ने ख्वाब बुनने बंद कर दिए थे. ये वो वक्त था जब माओं को अपने बच्चों के आने वाले कल की फिक्र होती, तो इस बात की नहीं कि उनके बच्चों की तालीम कैसी होगी, बल्कि इस बात की कि आखिर और कब तक उनके बच्चे इस जुल्म व सितम को झेलेंगे, आखिर और कब तक इस मसाइब व आलाम में जिएंगे. कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाज कर रहा था तो कोई गोलियां चला रहा था. सीधी सी बात ये, हिंदुस्तानियों में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में इल्म व तालीम की कोई फिक्र नहीं थी. ऐसा लगता था कि जैसे उम्मीद की कोई भी किरण मौजूद ना हो. तभी सर सैयद ने शाहजहानाबाद के मलबे से ज़ख्मी मुस्तकबिल को अपने हाथों में लेकर अलीगढ़ में इल्म व तालीम की वो शमा जलाई जिसका तवाफ करते हुए नस्लों ने अपने हिस्से के सूरज को गुरूब होने से बचा लिया. फराज़े अर्श से टूटा हुआ कोई तारा, कहीं से ढूंढ के लाओ, बड़ा अंधेरा है. उस अंधेर दौर में एक शख्स था जो उम्मीद, तालीम और मोहब्बत की मशाल जलाए खड़ा था, जो ये कह रहा था कि तालीम तो वो चाबी है जो आज़ादी के सुनहरे दरवाजे को खोल सकती है. वो शख्स था सर सैयद अहमद खान. बकौल सर सैयद, ज़रूर ये लगेगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और शेख चिल्ली की सी बातें कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मकसद एमएओ कॉलेज को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है. ये थी उनकी सोच उस ज़माने में जब एक आम आदमी को अपना आने वाला कल नहीं दिख पा रहा था. सर सैयद को एक पूरी कौम, एक पूरे इदारे की फिक्र न सिर्फ परेशान कर रही थी, बल्कि उसको लेकर उनके पास एक नज़रिया भी मौजूद था, जिसे अपनी फिक्र नहीं थी बल्कि फिक्र थी उन नस्लों की जो आगे आने वाली थी.
इसलिए सर सैयद ने अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठा लिया। उसके लिए उनको मुखालफतें भी झेलनी पड़ी। मौलवियों ने तो उनके खिलाफ न जाने कितने फतवे जारी किए। अकबर इलाहाबादी ने भी बेशुमार जगहों पर उन्हें अपने तंज का निशाना बनाया और उनसे मिलने पर वो भी उनकी कायल हो गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद अहमद काम करता है, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले। हाज़रीन महफिल, सर सैयद ने इस इदारे के लिए जो कुछ किया है उसे हम किसी भी तराजू में तोल नहीं सकते। लगातार लोगों से पैसों की मदद की इल्तिजा करना और बदले में ज़माने भर से जिल्लत मिलना। आखिर हम में से ऐसे कितने हैं जो अपनी अना को एक तरफ रखकर अपनी कौम के लिए ज़माने भर से मुखालफतें और तल्ख बातें सुन लें। वो सर सैयद थे जो ये कहते थे कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कौम की फिक्र से मेरा दिल बेचैन ना हो उठे। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। सर सैयद सिर्फ हम मुसलमानों के लिए इल्म तालीम का ज़रिया ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि उसका सही इस्तेमाल क्या है। जिस निज़ाम तालीम की पैरवी करने के लिए सर सैयद ने हमें कहा, उसके हिसाब से हमारे एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में फ़लसफ़ा और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज होना चाहिए। गुस्सा करना, अदावतें रखना एक अच्छे आलिम या फ़लसफ़ी की पहचान नहीं है। जब विलियम म्योर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत की, तो सर सैयद के दिल में भी उतनी ही हरारत हुई जितनी एक आम मुसलमान के दिल में होती। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई गैर मुनासिब कदम नहीं उठाया, उसकी किताब को जब्त करने की बात नहीं की, उसके पुतले को नजर आतिश नहीं करना चाहा, बल्कि उसकी किताब का जवाब किताब ही से दिया। ये था सर सैयद का पैगाम कि हम इल्म तालीम के मैदान में इतने आगे बढ़ जाएं कि मुसन्निफ की आंख से आंख मिलाकर उसे बातिल का जवाब दे सकें, ये तालीमी क़ुव्वत अपने अंदर रख सकें। सामईन, एक हकीकत जो इस बज़्म में बैठे हर शख्स को एतराफ़ करना होगा वो ये कि बेशक सर सैयद ने हम पर अपना हक अदा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमसे कहाँ भूल हुई कि आज 150 साल से इस तहरीक ने कोई दूसरा सर सैयद पैदा नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि हम में से और मौलाना हाली, हसरत मोहानी नहीं निकले। ज़रूर हमने अपने फ़र्ज़ में कोताही की है, लेकिन अब भी वक्त है इस कौम को, इस इदारे को, इस मुल्क को आसमान की उन बुलंदियों तक ले जाने का जहाँ शायद खुद सर सैयद ने भी तसव्वुर न किया हो। बेशक रास्ता आसान नहीं होगा, ठोकरें लगेंगी, लेकिन ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पाँव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें ठोकरें नहीं लगती, वो आसमान की बुलंदियों को हासिल नहीं कर पाते। और एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि जो एक चीज़ हमें आसमान की उन बुलंदियों को हासिल करने से रोक सकती है वो कोई और नहीं बल्कि खुद हम हैं। अब अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जलाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जाकिर हुसैन कॉलेज के बीटेक के इलेक्ट्रिकल के तालिब इल्म फ़हीम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, लेकिन उर्दू का करंट जिस तरह दौड़ रहा था उस हिसाब से तालियां मुझे कमज़ोर नज़र आईं। एक बार ताली बजाकर फ़हीम की हौसला अफजाई कीजिए। ख़वातीन हज़रात, आज से 103 साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक खातून नवाब ऑफ भोपाल बेगम सुल्तान जहाँ को अपना चांसलर बनाकर सारी दुनिया को विमेन एम्पावरमेंट का सबक पढ़ाया था। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। हम आज भी कैनेडी हॉल में अपने बॉयज़ को नीचे और अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपने सरों पर बिठाते हैं और सारी दुनिया को ये बताते हैं कि इस्लाम में औरत की अजमत क्या है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ख़वातीन ने दुनिया भर में अपने इल्म फ़नून के ऐसे परचम लहराए हैं। हमीदा सईद ज़फ़र ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर इंटरनेशनल फिगर समझी जाती हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर किश्वर शब्बीर, साइकोलॉजी में प्रोफेसर हमीदा अहमद,
गायनिकोलॉजी में प्रोफेसर शाइस्ता मोहसिन, सोशोलॉजी में शाद बानो अहमद और आज के दौर में हिस्ट्री में शीरी मूसवी और जोलॉजी के अंदर कुस्सिया तहसीन ने अलीगढ़ के उसी परचम को बुलंद किया हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, ये बच्चियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे कहाँ तक पहुँचना है। आपको याद रखना चाहिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तमाम ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना अपना हक़ अदा किया है। मैं किस और आज जो यहाँ पर मैं सामने एक कहकशां देख रहा हूँ ओल्ड बॉयज़ की, अटलांटा से हसन कमाल साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे नबातात की आलमी शख्सियत वजाहत हुसैन साहब नज़र आ रहे हैं, मुझे अपने साबिक ओल्ड बॉय विवेक बंसल नज़र आ रहे हैं, मुझे राहत अबरार नज़र आ रहे हैं। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं। यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। एक बार ज़ोरदार तालियों से अपने अपनाए क़दीम का इस्तकबाल कीजिए। दुनिया के आधे हिस्से में रात हो रही है, लेकिन सर सैयद के मतवाले और आशिकाने सर सैयद जाग कर आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। रेख्ता की एक और नामवर फर्जंद, एक हमारी होनहार तालिबा खलील रहमान आज़मी की दुख्तर यहाँ सामने बैठी हैं। मैं अपनी बहन का नाम भूल रहा हूँ, प्लीज़ आप खड़ी हो जाइए और ये बच्चियाँ तालियाँ बजाएं। हुमा खलील रेख्ता की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, आइए मैं आयशा मुनीरा रशीद जो अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो बानी दरजगात को खराज तहसीन पेश करें। आयशा रशीदा मुनीर के मज़ामीन इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स ऑफ रिप्यूट में बराबर छपते हैं। आप ख़ास तौर से आपकी किताबें रुतलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लैकवेल और साहित्य अकेडमी ने शाये की हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कंपेरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन, मुस्लिम लिटरेचर एंड कल्चर, लिटरेरी थ्योरी, जेंडर स्टडीज़ आपका ख़ास मौजू है। आप अमेरिका, बरतानिया और इटली में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रह चुकी हैं। मैं अपनी बच्चियों को बताना चाहता हूँ, इसी दयार अलीगढ़ ने हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आला मुसलमान अनवर तैमूर को पैदा किया। यहीं से मोहसिना किदवाई निकली, यहीं से पद्मश्री नजमा अख्तर आज जामिया की बागडोर संभाले हुए हैं। आयशा मुनीरा रशीद से मुल्तमिस हूँ, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मैं आई नाउ रिक्वेस्ट आयशा मुनीरा रशीद टू डिलीवर। Honorable Justice Ataur Rahman Masoodi, respectable guests of honor, Mr. Syed Shahid Mehdi IAS, Mr. Sanjeev Saraf, founder Rekhta Foundation, and Dr. Lawrence Gautier, Center of Sciences for Men, New Delhi, dignitaries sitting on the dais and off dais, esteemed AMU alumni around the world, and the life and blood of AMU, dear teachers and students. Adab, Assalamu Alaikum, a very good morning to all of you. Sir Syed Ahmad Khan, a towering figure of the 19th century Indian reform movement, knew the pulse of his times and was familiar with the zeitgeist. The mutiny of 1857 had proved that raising arms against the mighty empire, against the British mighty empire, was suicidal. So he rode back to the empire, Asbab-e Bagawat-e-Hind, causes of Indian mutiny. But more vehemently, he focused his attention on psychological, moral and socio-economic empowerment of the nation and community through education and knowledge production. To Sir Syed Ahmad Khan, education is an all-round development of the personality of an individual by inculcating in them the spirit of scientific temperament and critical inquiry, and also by imparting to them the skills that would enable them to live a life of dignity. Something to which National Education Policy 2020 is also drawing our attention to. Specifically, students, I'm addressing you. You spend a lot of time, and I'm also guilty, a lot of us, we spend a lot of time hanging our heads low, looking at the screens of our smartphones. Definitely, we are living in a post-truth world. We are inundated with information and misinformation. Decisions and foreign policies of great empires are being made based on biases and prejudices. The politics of representation that scholars like Edward Syed and Gayatri Chakravarti Spivak talk about has become all the more relevant than it ever was. Wikipedia is something that can be edited by any Tom, Dick and Harry. The page on Sir Syed Ahmad Khan does not present a judicious picture
of our founder. Especially, it does not represent his views on communal diversity judiciously. I tell you the truth that Sir Syed Ahmad Khan believed that Hindustan was the watan and nation for all cultural communities. And he says, I quote him, I translate, we have come so, he first talks about, in a lecture in Patna he delivered in 1883, he talks about cultural diversity in India, and he says that Hindus as well as Muslims came from various places at various points in history, settled down in India, adopted India as their own country. And then he says, we have come so close to each other that we have developed a new language, Urdu, which was neither ours nor theirs. Hence, apart from religion, in Hindustan, we as compatriots are in fact one nation. Our success and progress is possible only in mutual harmony and mutual sympathy and love. With mutual hatred and mutual condemnation, will both ruin each other, unquote. We are a salad bowl or a melting pot or any other cultural paradigm, but we know one thing for sure, that diversity and difference makes the world a beautiful place. It only turns ugly when diversity and difference is used in order to spread discrimination, hatred, mutual distrust, and injustice. Since Sir Syed Ahmad Khan warned us against the danger of what came to be known as the clash of civilization in the late 20th century, a thesis proposed by Samuel Huntington in order to analyze post-Cold War era. Interpreting Sir Syed Ahmad Khan, Iqbal says in Syed Ki Lohe Turbat, and I translate, never open your mouth for communalism or hate speech. Lying dormant here is the doomsday mayhem. Create reasons for bringing people closer to each other through your writing. Watch out, never hurt any heart while speaking. वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी ज़बां, वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी ज़बां, छुप के है बैठा हुआ हंगामे महशर यहाँ. वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से. Dear netizens of AMU, India and the world, we should remember this advice before speaking, writing, or even posting anything on social media. Sir Syed talks about the roots we have developed in India, in Hindustan, and we should be, he says that we should be cosmopolitan and and we should also have a worldview that embraces all kinds of cultures. There's nothing wrong with the popularity of historical and fictional series that the youth watches these days, but we must take pride in hybrid identity, and we must watch out and never subscribe to parochialism and narrow-mindedness. Friends, let us not always look across at some other point in history or some other geographical space in order to think, thinking that the grass is greener on the other side of the fence, but we should water the grass where we live. Another point that I would like to draw your attention to is a controversial topic. It's Sir Syed's views on women's education. Scholars allege that he was not in favor of women's education, but Sir Syed Ahmad Khan, in a lecture he delivered in Aligarh itself, in a conference, in Muhammad Educational Conference in 1891, he says that such allegations are totally false. And he was more concerned about the fact that men were not ready, rather the society was not ready to accept smart, intelligent and educated women. In a letter to Maulvi Mumtaz Ali, Sir Syed raises the same issue, genuinely expressing his concern about the behavior of boys, and he says that the deplorable condition and unethical manners of boys belonging to our community are known to everyone. So I'm not going to read the entire text. He also said that boys do not consider he uses the word ladka, so I'm translating it boys. Boys do not consider their wives as their companions and sympathizers.
So he was concerned about something that we are still concerned about, we still think about, we are still worried about. Gender champions often say that the world has not come forward to accept intelligent women. And we can see the West, how the West is behaving. We can see how there's a glass ceiling for women, and which stops them from growing ahead, even if they're efficient. Last but not least, when we take pride in the fact that we belong to Aligarh Muslim University and many of our boys attach Ali to their names, remember it's a huge responsibility on our shoulders. We have to be a treasure house of knowledge, and we also have to be an epitome of the best behavior. When facing onslaught of Islamophobia or racism or misogyny, what do? We do what Sir Syed Ahmad Khan did. We have to give a befitting response with the help of our pen and knowledge, and also by empowering ourselves. I quote the last couplet of Iqbal's Syed Ki Lohe Turbat: awaken the sleeping with the miracle of poetry, burn the harvest of untruth with the fire of love. It's also written on Baba Syed: सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खिरमने बातिल जला दे शोले आवाज से. I part with you, thank you, with these words. ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाएं, ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ. शुक्रिया बहुत. Rashid from the Department of English for your English speech here. In her eloquent address, every moment she was reiterating the fact that women teachers of AMU are equally sharing the responsibility of carrying forward Sir Syed's educational mission in this university. We have women of AMU in NASA, in ISRO, in the United Nations. We have them in the civil services, in academia, in the performing arts, and our women have been winning the Padma Awards, the Sahitya Akademi Award, as well as the Gyanpith Awards. Moving on to the last speech, I will now request Dean Faculty of Theology, Professor Taqir Alam Falahi, to deliver his Urdu speech. Professor Taqir Alam is serving his second term as Dean at the Faculty of Theology. He has published more than 33 books in 4 languages, Arabic, Urdu, English and Hindi. He also has more than 200 papers in journals of repute. He has been visiting on speaking assignments countries like Iran, Kuwait, the United Kingdom, and Professor Taqir Alam has also been to the Mercer University in Atlanta, United States as a visiting professor. I request Professor Taqir Alam for his Urdu address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जस्टिस ताउर रहमान साहब मसूदी, मोहतरमुल मुकाम शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब, मेहमानाने ज़ीवकार, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ा किराम, अबनाए क़दीम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जोश मलिहाबादी ने हाफ़िले अलीगढ़ को ख़िताब करते हुए जिन मंजूम अल्फाज में मुखातब किया था, मैं शुरुआत उन्हीं अल्फाज से करता हूँ. ऐ अलीगढ़, ऐ जवां किस्मत दबिस्ताने कुहन, अक्ल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, तेरे पैमाने में है लर्जा शराबे इल्म फन, रूह सर सैयद से रोशन तेरा मैं खाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे. हज़रात सामीन,
कौम की फलाह बहबूद को मरकज़ तवज्जो बनाकर जिन अजीमुल मर्तबत हस्तियों ने इस्लाह कौम का बेड़ा उठाया और कौम के खाबिदा ज़मीरों को जगाया, नीज़ इसके तने नाजुक में शाही के जिगर पैदा करने का हौसला दिया, उनमें हज़रत सैयद की शख्सियत इंतहाई मुमताज़ है। सर सैयद अलैहिर्रहमा एक मुफस्सिर कुरान भी हैं, एक मुहद्दिस भी हैं, एक मुतकल्लिम इस्लाम भी हैं, एक फ़लसफ़ी और एक अदीब भी हैं, एक आशिक़ रसूल और एक सीरत निगार भी हैं, एक जुरतमंद और बेबाक मुबस्सिर भी हैं और सियासतदान भी हैं। और इसके अलावा सर सैयद अलैहिर्रहमा की शख्सियत के दूसरे पहलू हैं जो सर सैयद अलैहिर्रहमा को दूसरे तमाम मुस्लिहीन से मुमताज़ कर देते हैं। बिलाशुबा सर सैयद अलैहिर्रहमा ये सब कुछ है, लेकिन उनकी मरकज़ी और महवरी शख्सियत एक अजीम मुस्लिह की है, एक माहिर तालीम व तरबियत की है। और आपने जो अपनी बेशकीमत खिदमात पेश की, उनमें सबसे कीमती नजराना MAO कॉलेज की शक्ल में, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के नाम से मशहूर है, वो आपके सामने और हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। सर सैयद अलैहिर्रहमा की इस्लाही शख्सियत का इम्तियाज़ इसमें भी मुज़मर है कि आपको चौतरफा लड़ाई लड़नी थी। एक तरफ हिंदुस्तानी मुसलमान जो तासुब व तक़लीद जामिद का लिबादा ज़ेबतन किए हुए थे, दूसरी तरफ उलमाए किराम थे जो सर सैयद के मिशन में सद्दराह बन रहे थे, यहाँ तक के खिलाफ शाम फतवों से भी गुरेज नहीं किया। तीसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों का वो तबका था जो इस्लाम को अक्ल की कसौटी पर देखने का ख्वाह था। तीसरी तरफ ईसाई मिशनरीज थे जो इस्लामियान आलम को, बल्कि इस्लामियान हिंद को और ख़ास तौर पर सीधे साधे मुसलमानों को, बिलखुसूस नौजवानान इस्लाम को इस्लाम से नफरत दिला रही थी। ऐसे पुराशोभ माहौल में, ऐसे चैलेंजेस में सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इस्लाह और तजदीद का बेड़ा उठाया। बिलाशुबा सर सैयद अलैहिर्रहमा का कद सारे मुस्लिहीन में बहुत ऊंचा नज़र आता है। सर सैयद अलैहिर्रहमा की दरख्शां किताब ज़िंदगी का आगाज़ 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी के बाद से होता है। यकीनन मखसूस हालात में मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए वो कोशा थे। ख़ास तौर पर मरकज़ी तौर पर जो ख्याल था वो ये कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत शिकस्ता हाल हैं, ज़ख्म खुर्दा हैं, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। इस लिहाज से वो बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सरगर्म अमल थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक मुबस्सिर के बकौल सर सैयद अलैहिर्रहमा मुसलमानों की फलाह बहबूद में हिंदुस्तान की फलाह बहबूद देख रहे थे, और हिंदुस्तान की फलाह बहबूद में एशिया की फलाह बहबूद देख रहे थे। सर सैयद ये इस बात के ख्वाह थे, ख्वाहिशमंद थे कि हिंदुस्तान अगर एक दुल्हन है तो दुल्हन की दोनों आंखें, हिंदू और मुसलमान दोनों आंखें दुरुस्त हों। सर सैयद इस बात के ख्वाह थे कि अगर हिंदुस्तान एक घर है तो इस घर के दोनों मकीन, दोनों भाई, बड़े और छोटे भाई, या दोनों भाई सेहतमंद हों, तवाना हों, तवंगर हों, ताकि अक़वाम आलम में हिंदुस्तान जिस नक्शे पर आए वो इस लिहाज से आए कि हिंदुस्तान तवाना है, तवंगर है, सेहतमंद है, खूबसूरत है। गोया सर सैयद सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे बल्कि हिंदुस्तानियों के भी लीडर थे। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने
जब तालीमी तहरीक शुरू की तो इस तालीमी तहरीक के दरमियान अपने तलबा को और तालिबात को, बल्कि अलीगढ़ बरादरी को जो मैसेज दिया था, जो पैगाम दिया था, वो एक पैगाम ये था कि तुम अपने दाएं हाथ में कुरान, दाएं हाथ में फ़लसफ़ा और बाएं हाथ में साइंस और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज। और गोया ये पैगाम इस तरह था कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चर्च पे झूलो, पर बंदे नाचीज़ की एक बात रहे याद, अपनी और अपने खुदा की हकीकत को न भूलो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सर सैयद अली रहमान ने कुरान सुन्नत की तालीमात को पेश नज़र रखा। हिकमत एक बेहतरीन दौलत है और मोमिन की मताए गुमशुदा है, खोई हुई दौलत है। इसके तहत मगरिब और मगरबी तहजीब से खुशाचीनी की तलकीन भी की, तरगीब भी की, और इसके बाद तासुब और तकलीद जामिद का लिबादा उतार फेंकने की तरगीब की। और अंग्रेज़ों के नमक खार होने के बावजूद, एहसानात से दबे होने के बावजूद, आप जानते हैं कि असबाब बगावत हिंद लिखकर जुर्रतमंदी की एक मिसाल पेश की। सीरत विलियम मेवर की किताब सीरत लाइफ ऑफ मोहम्मद पर दंदा शिकन जवाब लिखकर खुतबात अहमदिया की शक्ल में सारे इस्लामियान आलम को, ख़ास तौर पर इस्लामियान हिंद को इसके रसूल का सबक सिखाया और MAO कॉलेज का कीमती नजराना पेश करके, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में है, कौम को, पूरे मुल्क को ये सरमाया अजीम दिया। आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक चश्मे साफ़ी है, जिस चश्मे साफ़ी से मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों नहीं लाखों अफराद सैराब हो चुके हैं और आज हो रहे हैं और परवानावार इस चश्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इदारा ही नहीं बल्कि एक तहरीक है, जो मुल्क और बैरून मुल्क में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इदारों के वजूद मसूद की शक्ल में दावत मुलाहजा दे रही है तहरीक। हज़रात गिरामी, सर सैयद अली रहमान कौमी फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ इनके अफ़कार व नज़रियात हों, तासुब व तक़लीद जामिद के ख़िलाफ़ इनके अफ़कार हों, या फिर रसूम व रवायात के ख़िलाफ़ इनकी सदाए एहतजाज हो, कौम किस तरह तरक्की करे इस सिलसिले में इनके अफ़कार व नज़रियात हों, तलबा और तालिबात हमारे कैसे रहें, नुक़ूश राह हों, और इसी तरह तालीम के सिलसिले में जो अफ़कार व नज़रियात हैं, जो रोशन और दरख्शां अफ़कार व नज़रियात हैं, इन रोशन अफ़कार व नज़रियात की ज़रूरत सिर्फ़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं, सिर्फ़ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। इन अफ़कार की कदर, इन नज़रियात की कदर पूरी दुनिया के अंदर है। इसलिए बिलाशुबहा ये कहा जा सकता है कि सर सैयद सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लीडर नहीं, और बल्कि पूरी दुनिया के लीडर हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सर सैयद को याद किया जा रहा है और सर सैयद को अपने मखसूस अंदाज में खराजी अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मैं इस पैगाम के साथ आपसे रुख़सत होना चाहूँगा कि आज इस गुलिस्तान सैयद के अंदर हम बैठे हुए हैं। इस गुलिस्तान सैयद से हमारी ये आवाज़ उठनी चाहिए, हमारा ये पुख्ता इरादा होना चाहिए, हमारा ये अज़्म होना चाहिए, चाहे हम असातिज़ा हों, चाहे मुंतज़िमीन में हो, चाहे तलबा और तालिबात में हो, चाहे दूसरे खुद्दाम में हो, कि हम इस मादर इल्मी की हिफाजत करेंगे, इखलास का नजराना पेश करेंगे और अपनी सारी हम कुर्बानियाँ पेश करेंगे इस इदारे की बका के लिए, इस इदारे के फ़रोग़ के लिए। आखिर में मैं इस पैगाम के साथ आपसे रुख़सत हुआ चाहता हूँ। नकी सैयद के मंसूबों की गर तायीद यारों ने, नकी सैयद के मंसूबों की गर तायीद यारों ने, संभलने की नहीं हरगिज़ है ताबो तमा हम में, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है मंजिल का निशा यारो, पहुँचने दो सलामत ताब मंजिल कारवा यारो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर तौक़ीर आलम फलाही साहब। एक फसीह और बलीग तकरीर फरमा रहे थे और ज़ाहिर है एक आलिमाना तकरीर थी, एक आलिम दीन की जानिब से। Ladies and gentlemen, it is now time to honor some students who have enthusiastically participated in the celebrations of Sir Syed Day, and as we are reiterating the Eid like a festival.
The university administration has always taken very seriously the mission of carrying forward Sir Syed's legacy among students because they are essay writing competition. It is our attempt to reinvigorate, revitalize and reinvent the message and philosophy of Sir Syed relevant to the present times. This year, the Public Relations Office of the Aligarh Muslim University organized the All India Sir Syed Memorial Essay Competition open for students of higher education institutions across the country. The topic given was Impact of Sir Syed on Urdu literature. As has been rightly said that he was the father of modern Urdu prose. The Public Relations Office received hundreds of entries in the categories of English, Hindi and Urdu. And let me tell you, today we are honoring 5 winners with trophies, certificates and cash prizes where from the Hakim Syed Ziaul Hasan Government Unani Medical College, Bhopal. Ms. Madiha Mumtaz is here with us, all the way from Bhopal. And as she walks up to the stage, we congratulate her for winning the 10,000 rupees. Ayub Ali, a PhD second year student from the Aligarh Muslim University, 15,000 rupees. Mr. Ayub Ali getting his certificate, trophy and a cash prize of 15,000 rupees for the Hindi category, 15,000 rupees second prize. The first prize in the Hindi category goes to, once again, an AMU student, Mr. Amal Beg, in BA first year. Moving on to the next category of Urdu essays. Let me invite the third prize winner, Ms. Tabassum Parveen, an MS student from the Institute of Education for Women, Kolkata, West Bengal. Ms. Tabassum Parveen, MS third year. Third prize winner, 10,000 rupees, Hindi category, All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition. I request the esteemed members present on the dais to kindly felicitate Ms. Tabassum Parveen, all the way here from Kolkata, to receive the prize. Indora Jobeen, a BA second year student from the Aligarh Muslim University, 15,000 rupees. Urdu category All India Essay Memorial, All India Essay Competition in memory of Sir Syed. Ms. Eman Jobeen. May I request all the winners to please come near the red carpet. We are taking a lot of time in walking up and down. Volunteers of the CEC, please bring the winners near the red carpet. And the first prize, 25,000 rupees, goes to Ms. Mariam B, a PhD first year student from the Aligarh Muslim University in the Urdu category. Mariam B, 25,000 rupees from our Vice Chancellor, joined by the Chief Guest and guests of honor. In the English category, the third prize is bagged by a student from Coimbatore, Miss M. Rihana in MSc from the Nehru Arts and Science College. She gets a BCom second year student from the University of North Bengal, Mr. Dafiul Haq. And finally, the first prize in the English category goes to a BA first year student of the Aligarh Muslim University, Miss Ilma Khan, 25,000 rupees for the English category. Okay. Thank you very much. Agriculture, health sciences, including pharmacy and nutrition,
engineering and technology, basic sciences, humanities, social sciences, commerce, management, law, international studies, and theology. In all these 5 categories, AMU students and their teams had this year submitted 63 proposals. They are being given prizes of 2,500 rupees as the third prize, 3,000 rupees as the second prize, and 4,000 rupees as the first prize. These students will only come and line up here, and their checks will be handed over to them later. I will announce their names. In the health sciences category, the third prize goes to Sara Izhar, a student of MTech Processing and Food Engineering. The second prize goes to the team of Alvia Farheen and Sabahat Ariba, MSc final year student of Zoology and BSc final year student of Zoology. And the first prize goes to Aisha Samreen, Masters in Dental Surgery. In the category of Agriculture, Muhammad Sabil from the Agricultural Economics and Business Management MBA course gets the second prize, and Sadia Firdaus gets the first prize. She is first in the category of Engineering and Technology. The third prize is bagged by the team of Muhammad Mazin Jamil, Syed Hashim Fahim, and Nabil Ali. They are pursuing these courses, BTech Electronics Engineering and BCA respectively. The second prize goes to Lavish Upadhyay, a student of BTech Electrical Engineering, and the first prize goes to Muhammad Maaz and Azam Raza, pursuing PhD in the Interdisciplinary Nanotechnology Center of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology. From all of us present here, to extend to all these AMU students heartfelt congratulations. We would like to encourage you to continue with this spirit of inquiry and innovation. Take the university forward and take the country forward. Contribute your bit in nation building. Many congratulations and God bless you all. Thank you so much. Between Nation and Community, that will be published by the Cambridge University Press. We are extremely grateful to her for accepting our invitation. Professor Gulrez, esteemed guests, esteemed dignitaries, dear students, teachers, staff members, and alumni, let me first thank all of you, and particularly Professor Gulrez, for your kind invitation. It is a great honor for me to stand with you today to celebrate Sir Syed's legacy. If you do not mind, I will start on a personal note. I first visited AMU 11 years ago when I was an MPhil student. At the time, I had just started doing research work on the history of AMU and Jamia Millia Islamia after independence. When I first came here, I was immediately struck by the hospitality of the AMU community. From the archivist in the Maulana Azad Library to teachers, students, and former members of the university who all accepted to share their memories and their experiences in this university. I also keep very fond memories of delicious dinners with families in Medical Colony close to the guest house where I used to stay. These interactions all give me precious insights into the life of AMU's vibrant community. I believe that this sense of hospitality has much to do with the pride and the deep sense of attachment that Eligarians share for their alma mater. This is the second thing that strikes me most about this university. I do not think that I have seen quite the same kind of attachment in any other university, not even at Cambridge. Everywhere around the world, AMU alumni and alumni continue to meet. They cultivate friendships that started at Aligarh. They form associations of alumni that seek to cultivate AMU's ethos. Long after they leave the university, they continue to express a strong feeling of being part of a shared community, that is the Aligarh community. I suspect that this pride and this affection for AMU
has much to do with Aligarh's founding figure, Sir Syed Ahmed Khan, whose legacy we are celebrating today. There is a consciousness that by joining the university, we are not just part of an institution, we are part of a movement. We all know how momentous Sir Syed's influence has been, not just for Muslims in the subcontinent, but for the entire country, as one of India's most important reformers. As a historian, I was amazed to discover how prolific this man was. Not only did he establish several educational institutions, including, of course, the Mohammedan Anglo-Oriental College, which became one of the top universities in the country, he was also a historian, a diplomat, an administrator, an advocate, and a scholar with an interest in religions, in archaeology, science, technology, and politics. Today we celebrate him. But Sir Syed did not always receive a warm welcome. In fact, some of his works ruffled quite a few feathers, most notably his interpretation of the Holy Scriptures. Many of his contemporaries were critical of what they called his Nechari approach, in which he sought to show that the Word of God was consistent with the law of nature. Sir Syed's ideas spurred debates precisely because they were new and challenged the ways of the times. His followers themselves did not always agree with him on each and every topic. The hallmark of a great reformer is that he or she leaves a body of works that does not remain frozen in time, but that spurs debates and that their successors can build upon. Here, I have in mind one of Sir Syed's disciples, who became yet another formidable figure of the Aligarh movement. And actually, quite a few of us indirectly refer to him. I am thinking here of Sheikh Abdullah, who, along with his wife Begum Abdullah, started Aligarh School for Girls, which later became the famous Women's College. Sheikh Abdullah and Begum Abdullah did not merely reproduce what Sir Syed had done. They extended his legacy in the light of the times. This is why we speak of the Aligarh movement. Sir Syed inspired a succession of men and women who, in their turn, carried forward social and educational reforms. The best way, to my mind, to pay homage to Sir Syed today is to constantly and critically engage with his legacy to keep alive the spirit of reform that he instilled in his followers. Before I conclude, I would like to highlight some of the key ideas that marked Sir Syed's legacy. First is, of course, the idea that social progress is only possible through educational reform. In a time of crisis, after the 1857 war, Sir Syed understood that political maneuvering would not suffice. The only way for the calm, and here by calm, I mean both community and nation, so the only way forward for the calm was to uplift itself through education. Second, the kind of education that he sought to promote was not restricted to a specific discipline, vocation, or field of competence. It embraced science as well as the humanities, talim as well as tarbiyat. Sir Syed wanted to train well-rounded individuals capable of making an impact on society. Third, this education was not bound by geographic origins either. It brought together an engagement with one's own culture and an openness to the world beyond. I believe that these ideas remain highly relevant in today's world, and I hope that they will continue to inspire many new generation of Aligarhians. I wish you all a very happy Sir Syed Day. Thank you. और न जाने कहकशां पैदा की, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि रतननाथ सरशार
पंडित दयाशंकर नसीम, पंडित ब्रज नारायण चकबस, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, रघुपति साहिब फिराक, उपेंद्र नाथ अश, कृष्ण बिहारी नूर, पंडित गुलजार दहलवी और गोपी चांद नारंग के बगैर उर्दू का कोई भी मंजरनामा, उर्दू का कोई भी तस्करा अधूरा है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संजीव सर्राफ जो आज मेहमान एजाज़ी के तौर पे मौजूद हैं, उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया। आज दुनिया में जिस तेज़ी के साथ मंजरनामे बदल रहे हैं, लोगों को अदब पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है। उर्दू अदब को, हिंदुस्तानी ज़बानों को बिलूम और उर्दू अदब को जिस तरह उन्होंने बिलखुसूस डिजिटलाइज किया और नई नस्लों तक, उर्दू न जानने वालों तक उर्दू को जिस दीवानगी और आशिकाना अंदाज में पहुंचाया, ये उन्हीं का हिस्सा है। हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दयार से संजीव सर्राफ की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। उर्दू जिसे कहते हैं मोहब्बत की ज़बान है, दुनियाए मोहब्बत की यही शाहजहाँ है। उर्दू न तो हिंदू न मुसलमान की ज़बान है, ये दिल की ज़बान, दिल की ज़बान, दिल की ज़बान है। जो लोग दिल से काम करते हैं वो संजीव सर्राफ बनते हैं। संजीव सर्राफ के जश्न रेख्ता को देखिए, उन्होंने जनरेशन गैप को मिटा दिया है। इस जश्न रेख्ता के अजीम शान जलसे जो आप देखते हैं, जो मुनक़िद होते हैं, बच्चे, नौजवान, जवान, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन और बहुत बूढ़े, एक पूरा का पूरा जनरेशन गैप उस जश्न रेख्ता में मिट जाता है। जब कोविड पेंडेमिक में पूरी दुनिया सो रही थी, लॉकडाउन का शिकार थी, संजीव सर्राफ की सीमा सिफत शख्सियत उस वक्त रातों को जागती थी और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ऑनलाइन उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी डिक्शनरी कोविड के पीक टाइम 2021 में मंजर-ए-आम पे आ गया। नई नस्ल के लोगों को उर्दू से वाक़फियत कराने के लिए और शेर गोई का ज़ौक़ पैदा करने के लिए संजीव सर्राफ ने काफ़िया डिक्शनरी और दूसरा इल्म उरूज़ एप्लीकेशन तैयार किया। अब आप देखते हैं पिछले 10-12 साल में उर्दू शायरी के नए नए लिखने वाले जो की एक पूरी फौज पैदा हुई है, उसका पूरा का पूरा सेहरा संजीव सर्राफ के सर जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने संजीव सर्राफ को सर सैयद कौमी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा, तो हैदराबाद की मानू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने आपको डीलिट के एजाज़ से नवाजा है। संजीव सर्राफ उन शख्सियात में शामिल हैं जो अगर कुछ तय कर लेते हैं तो बरहम हों बिजलियाँ के हवाएं खिलाफ हों, कुछ भी हो एहतमाम गुलिस्तां करेंगे हम, वो करके दिखाते हैं। आज ख़ास तौर से छोटे बच्चों को कहानियों का शौक़ पैदा करने के लिए, अदब से, विरासत से और तहजीब से जोड़ने के लिए उन्होंने कहानी ट्रेन नाम का एक सिलसिला शुरू किया, जिससे लाखों बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। जहाँ जहाँ उर्दू की आबादियाँ कायम हैं, ये 9 आबादियाँ कायम हैं उर्दू की। आज आलम यह है कि आप इस साइट पे जाइए और आप शेर की जगह एक चांद डाल दीजिए, एक लफ्ज़ डाल दीजिए चांद या चिराग, और आपको हज़ारों शेर उस पर मिल जाएंगे, मुख्तलिफ ज़बानों में मिल जाएंगे। 200 साल पुराना असातिज़ा का कोई मिसरा डाल दीजिए, पूरी गज़ल और तर्जुमा उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में आपको मिल जाएगा। इसने इस पूरे गैप को दूर किया और उर्दू आज दुनिया के कोने कोने में अगर पहुंची है तो संजीव सर्राफ की वो खिदमत इसमें शामिल हाल हैं। हम संजीव सर्राफ से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। तुमने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। संजीव सर्राफ। मुअज़्ज़ज़ डीसी साहब प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़, मेहमान खुसूसी जस्टिस मसूदी, मोहतरम शाहिद मेहदी साहब, लॉरेंस गौटियर साहिबा, स्टेज पे सभी बैठे सभी असातिज़ा, तलबात, दोस्तों, फाउंडर्स डे के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्ताफ़ हुसैन हाली के इस शेर से शुरू करता हूँ जो उन्होंने अलीगढ़ के लिए कहा था। आई गुलशन में न तेरे भूल कर फसले ख़िज़ां, आई गुलशन में न तेरे भूल कर फसले ख़िज़ां, तेरी सरहद में रहा हर इल्म दानिश का समा। जब मैंने उर्दू दुनिया में कदम रखा तो अलीगढ़ शहर के बारे में भी जाना, जो कि एक फितरी अमल था। जैसा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी खुद नविश्त आशुस्त बयानी मेरी में कहा कि उर्दू का एक नाम अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ अपनी ख़ास तहजीब के साथ साथ उर्दू के लिए भी जाना और माना गया। इसकी फ़ज़ा हमेशा शेर व शायरी से मुअत्तर रही।
Its hallowed columns tell stories of many Urdu poets and writers. उर्दू का शाहकार अदब इसी सरजमीन पर तश्कील हुआ। फ़ानी, मजाज, जोश, सरदार जाफरी, खलीलुर रहमान आज़मी, शहरियार, इस्मत चुगताई, फ़ुरतुन हैदर, मोइन हसीन जज़बी, बहुत तवील फहरिस्त है। महशर तलक कहूँ मैं अगर मुख्तसर। जब तक कि कोई शायर अलीगढ़ के स्टेज पर कामयाब न हो तब तक उसे पाए का शायर नहीं माना जाता था। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से पहले ही उर्दू में प्रोग्रेसिव पोइट्री की शुरुआत अलीगढ़ कैंपस में हो चुकी थी। पर्पसफुल पोइट्री का कॉन्सेप्ट भी अलीगढ़ में सर सैयद के ज़ेर साया इस्टेब्लिश हुआ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला शायर हसरत मोहानी भी अलीगढ़ की देन है। आज सर सैयद का यौम विलादत है। सर सैयद ने जहाँ ये यूनिवर्सिटी क़ायम की वहीं उनका उर्दू ज़ुबान और अदब की तरफ भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इनफैक्ट सर सैयद ने उर्दू में हिस्टोरिकल टेक्स्ट की स्कॉलरली एडिटिंग का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी मैगज़ीन तहज़ीबुल इखलाक में सबसे पहली बार उर्दू में पंक्चुएशन मार्क्स, मॉडर्न प्रिंट फ़ॉन्ट्स और टाइपफेसेस इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से उर्दू की रीडेबिलिटी इम्प्रूव हुई। सर सैयद ने उर्दू ग्रामर पर पहली किताब भी कंपाइल की। यहाँ साइंटिफिक सोसाइटी में दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों से उर्दू में ट्रांसलेशंस हुए। नए ख़यालात, नई थीम्स और नई टेक्निक्स से उर्दू अदब को आशना किया, जिसने उर्दू अदब को नई राहें दिखाई। What makes Aligarh so special is this alchemy of Western education and Eastern culture. अंग्रेज़ी और उर्दू का सबसे खूबसूरत मर्जर हमें अलीगढ़ में नज़र आता है, जो कि बेहद नायाब है। उर्दू वाले सिर्फ उर्दू जानते हैं, इंग्लिश वालों को उर्दू पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है या उन्हें वसाइल ही नहीं। अलीगढ़ में आज भी उर्दू पढ़ाई जाती है और जहाँ तक मुझे मालूम है, द इंग्लिश डिपार्टमेंट हियर, like all the other departments of this university, is one of the best in India. इस दिलकश इम्तिजाज की वजह से अलीगेरियंस का एक ख़ास पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। एक कॉन्फिडेंस, एक ख़ुद एतमादी को नर्चर करने में फ्लुएंट स्पीच एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा रोल। ज़ुबान की फसाहत और हाजिर जवाबी have been the attributes of Algerians all over the world. उर्दू ज़बान का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। Whatever their profession be, a passion for the creative arts, music and poetry is the hallmark of Algerians. ये सिफ़ात यहाँ के सभी स्टूडेंट्स में मौजूद होती है। Because of this special quality, Aligarh alumni have been able to spread our unique culture throughout the world. Please keep nurturing this unique ability which makes you stand apart in a crowd. आखिर में मैं आप सबको जश्न रेख्ता दिल्ली में आने की दावत देता हूँ, जो कि 8, 9 और 10 दिसंबर को। हमारी ऑडियंस में 70% नौजवान होते हैं। हमें खुशी है कि सिर्फ 10 साल कबल जो लोग उर्दू को एलियन ज़बान समझते थे, वही लोग आज लाखों की तादाद में रेख्ता की वेबसाइट पर और रेख्ता के प्रोग्राम्स में आते हैं। आप सब ही उर्दू के वारिस हैं और आप ही को इस कारवां को आगे बढ़ाना है। एक बार फिर सर सैयद के यौम विलादत पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, जय हिंद। लेकिन ये नहीं बताया कि जो 30% बूढ़े होते हैं, जब वो लौट के आते हैं तो वो भी नौजवान हो जाते हैं। ये खूबी है जश्न रेख्ता की। हजरात, अब हमारे दूसरे स्पीकर जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब हैं। इसी दयारे सर सैयद के इंतहाई आउटस्टैंडिंग नामवर फर्जंद
MA किया हिस्ट्री में और टॉपर रहे, फारसी ज़बान पढ़ी ग्रेजुएशन के अंदर, और अलीगढ़ से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा, न्यूयॉर्क और दूसरी जगह तक का सफ़र, अक़वाम मुत्तहिदा UNO के अंदर हिंदुस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे। जिस वक्त शाहिद मेहदी साहब जामिया मिलिया की वाइस चांसलर की बागडोर संभाल रहे थे, जामिया मिलिया बड़े पुराशूब दौर से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी से एकेडमिक कैलेंडर को दुरुस्त किया और जामिया आज जिस बुलंदियों पे है उसकी बुनियादों के अंदर शाहिद मेहदी का खून जिगर शामिल ज़रूर है। आप हमदर्द के चौथे चांसलर रहे। कम लोगों को मालूम है कि शाहिद मेहदी साहब बहुत बज़ला संज और बहुत अच्छे हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं, बहुत जिंदा दिल हैं। और मुझे एक वाक़या याद आता है, ऐसे 10-11 साल पहले वो अपनी निस्बती बहन के यहाँ दोधपुर में शमीम इसहाक मैडम के यहाँ ठहरे हुए थे। उनकी तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने मुझे तलब किया। मैंने पहला जुमला शाहिद मेहदी साहब से कहा, शाहिद मेहदी साहब मैं बुनियादी तौर पे पीडियाट्रिशियन हूँ, आपने मुझे को इलाज के लिए क्यों बुलाया? तो शाहिद मेहदी साहब ने कहा, भाई मैं बच्चा हूँ लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। तो ये उनका मिजाज है, वो उनके अंदर एक बचपना, उनके अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद रहता है। फ़ारसी बड़ी अच्छी जानते हैं, अगर आप YouTube पर जाएँ तो खुदाए सुखन मीर का जो मरसिया है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। बहुत सी बातें कही जा सकती थी, वक्त चूँकि कम है। उनकी शख्सियत में पॉजिटिविटी बहुत है, मस्बत सोचते हैं। तो मैं शेफ़र रसूल के एक शेर से उन्हें बुलाना चाहता हूँ। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने। उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने। उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज़ से मगर नाव बना दी मैंने। जनाब सैयद शाहिद मेहदी। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़, जस्टिस मसूदी, दोस्त संजीव सराफ, मैडम गाती है और रजिस्ट्रार मोहम्मद साहब, शायद कोई नाम छूट गया हो। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि इस मौके पे मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका दिया गया। बहुत सी बातें सर सैयद के बारे में कही गई। आजकल एक बहस शुरू हो गई है, इंडिया वर्सेस भारत। मोहम्मद से बहस है लेकिन भारत है। तो इस सिलसिले में मैं अपना बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं लूँगा। सिर्फ एक रिपोर्ट पंजाबी अखबार लाहौर में फरवरी 1884 में छपी और उसमें लिखा है कि 2 फरवरी को सैयद अहमद खान साहब की खिदमत में आर्या समाज का एक डेपुटेशन पेश हो गया। इस पर नोट करें। और मुंशी हीमन दास साहब सेक्रेटरी समाज भी हमरा थे। इस डेपुटेशन के आने की खबर सैयद साहब के यहाँ पहले से नहीं दी गई थी, इसलिए कोई ख़ास वक्त डेपुटेशन के आने का मुकर्रर नहीं हुआ था। और जब ये डेपुटेशन कोठी के आते के अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त सैयद साहब, मैं अपने अहबाब के एक मुअज़्ज़िज़ दोस्त की मुलाकात को सवार होकर रवाना वाले थे, लेकिन नहायत गर्मजोशी से उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और अपनी रवानगी को मुलतवी कर दिया। ये देखिए सर सैयद के बारे में जो गलतफहमी है कि सिर्फ ये मुसलमानों के उसके बारे में, बाकी चीज़ों पे तो काफ़ी रोशनी पड़ चुकी है। तो लाला संगम लाल ने सैयद साहब की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया और चंद मुख्तसर अल्फाज में अपने डेपुटेशन का मकसद बयान किया और कहा कि वो इज़्ज़त व तौक़ीर जो आपके यहाँ तशरीफ़ लाने से हुई बिलखुसूस मुसलमानों से मुतल्लिक़ है, मगर हमारे मुल्क के अहले हुनूर भी जिनकी तरफ से हम हाजिर हुए हैं, इस इज़्ज़त को अपनी तरफ मंसूब करते हैं और उस पर फ़ख्र ज़ाहिर करते हैं। गो आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन ये कुछ कम फ़ख्र की बात नहीं कि हमारे मुल्क में आप जैसा रिफॉर्मर मौजूद है।
मैं ख़ास तौर से इस थ्रेड को इसलिए पढ़ रहा हूँ, सैयद की इमेज है ज़्यादा, वो सेपरेटिस्ट, कम्युनिस्ट, कंसेप्चुलाइजर ऑफ डिवीजन ऑफ द कंट्री, ये एक कंटेम्प्रेरी अखबार की रिपोर्ट है। इसके बाद ये भी गौर करने की बात है, इसके बाद लाला संगमलाल ने मदरसतुल अवाम, जो इस वक्त मोहम्मद कॉलेज था, के कायम करने और उसके बेतसुबाना असूल की तरफ, जिस पर मदरसा कायम हुआ है और जिसकी वजह से हर मिल्लत और मज़हब के तालिबिन उसमें दाखिल हो सकते हैं, इशारा किया। तो दिस इज ए कंटेम्पररी एविडेंस ऑफ द ब्रॉड माइंडेडनेस एंड द सेकुलर थिंकिंग ऑफ सर सैयद। इसको आज एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आजकल ये एक कुछ फजूल किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि इंडिया वर्सेस भारत एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई थिंक आर डिस्ट्रैक्टिव। और सैयद साहब ने क्या कहा, शायद इस पर आपको कुछ हजरात को एतराज़ भी हो, लेकिन बात बहुत सच्ची कही। आपने जो लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल फरमाया है, ये कह रहे हैं, वो मेरी राय में ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू मेरी राय में किसी मजहब का नाम नहीं है, बल्कि हर एक शख्स हिंदुस्तान का रहने वाला अपने तय को हिंदू कह सकता है। अब इस पर आप सर सैयद पे फतवा दें, लेकिन दिस इज व्हाट सर सैयद थिंकिंग इज। चलो ऊपर जाके जल्दी कर ले, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा देना बोलेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज ऊपर चलो जाओ, वहाँ से कर ले। बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज के कंटेक्स्ट में इस बात को जरूर एम्फसाइज करना कि इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद इतनी तंग नजरी पे नहीं हुई, और उनके जो कुलीग्स हैं, उनमें नाम है बहुत प्रोमिनेंट लोगों का। और दूसरी बात जो आपकी शुरू हुई है वो इंडिया वर्सेस भारत, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, और ये कहना कि इंडिया जो है वो तो कॉलोनियल नाम है, और थिंग्स, मेरा ख्याल है इसमें जिहादत का ज़्यादा असर है। इसलिए कि अगर आप क्लासिकल ग्रीक, रोमन हिस्ट्री को देखें, किस तरफ से नाम किया इंडिया में भारत है, ठीक है, लेकिन ये इंडिया वर्सेस भारत के बहस क्यों है आज के ज़माने में जिहादत की। तो मैंने सोचा कि बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन जो सर सैयद का एक ब्रॉड और एक सेकुलर नज़रिया है, जो लोगों से पोशीदा रहता है, वो खुद उस वक्त के कंटेम्प्रेरी अखबार में जो खबर छपी, ये अखबार जो है वो मेरा ख्याल है 1800 कुछ का है, उसको हाईलाइट किया जाए, और ये आस्पेक्ट जो शख्सियत की एक मुख्तलिफ शख्सियतें हैं, उनकी शख्सियत के पहलू हैं, उस पर भी एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई आप समझ गए होंगे, मैं मेहमान खुसूसी की तरफ मुखातिब हूँ। जनाब अताउर रहमान मसूदी साहब लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सीनियर जज हैं। श्रीनगर के सिरपटाप कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया 1988 में, और अगले ही साल 89 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ यूपी में एनरोल हुए। आइनी मामलात हों, सिविल मामलात हों, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हों, सर्विस मैटर्स हों और इन्वायरमेंटल मैटर्स आपकी एक्सपर्टाइज की फील्ड है, जिसमें आपके फैसले बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं। आप इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच और दिल्ली हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट और यूपी स्टेट सर्विसेज ट्रिब्यूनल लखनऊ और सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी खिदमत सुनहरे अल्फाज में लिखी जाती हैं। फरवरी 2014 में आपने एडिशनल जज की हैसियत से हलफ लिया, और फिर फरवरी 2016 में आपने परमानेंट जज की हैसियत से कलमदार संभाला। इंसाफ हो
इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, इंसाफ में शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इंसाफ के अमल में किसी की मुदाखलत ना हो, ये है तो इंसाफ है। और मैं समझता हूँ कि अताउर रहमान मसूदी साहब इस सिलसिले के अंदर खासे सीरियस नज़र आते हैं और इस अहम कलमदान और इस अहम माहिर क़ानून की हैसियत से और जज के इस सेंसिटिव मनसब पर रहते हुए उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्हें बहैसियत मेहमान खुसूसी बुलाकर उसको खराज तहसीन पेश करती है। मैं उनको मुखातिब करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। चरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया है, कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। जनाब अताउर रहमान मसूदी साहब। तो डर था, उसका तकाजा तो ये था कि मैं बीच में ही बैठ के अपनी बात करूं, लेकिन मेरे नाम के साथ कुछ नातवान लफ्ज़ भी शामिल है जस्टिस का, तो मैंने सोचा कि राइट साइड पे खड़ा हो जाऊं ताकि इंसाफ को या इंसाफ से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी की गुंजाइश रहे। मेरी आवाज़ शायद दोनों तरफ सुनाई पड़ रही होगी। आखिरी आदमी जब बोलता है तो ये भी ज़रूरत महसूस करता है कि जो तकरीब में शामिल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं वो कहीं ज़्यादा थक तो नहीं गए होंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ लोग बिल्कुल ध्यान से सबकी बातें जैसे सुन रहे थे। मेरी बात भी उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज पसोपेश में हूं। मैं अपनी बात की इब्तिदा अपने इनफरादी मुशाहिदात से शुरू करूं। मैं अलीगढ़ के तासुर से शुरू करूं, मैं तारीख़ के उस पहलू से शुरू करूं जिसने मुझे मुतासिर किया है। बहरखैफ जहां से भी इब्तिदा हो, आप तमाम के सामने ज़ुबान से तो मैं नातमा महसूस कर रहा हूं, लेकिन तब भी अलीगढ़ के इस गुलिस्तान में हूँ जो सर सैयद के नाम से वाबस्ता है। तो इस नाम से जितनी भी मुझे तवानाई मिली है उसकी बुनियाद पे ये बातें चंद आपसे कर रहा हूँ। खुशी आज ये है कि सर सैयद अहमद खान जिनके नाम से ये तकरीब आरास्ता है, उनके कुंबे की एक सुतून हमारे सामने आज इस महफिल में मौजूद हैं। वाइस चांसलर साहब ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा, उनकी ज़रा नवाजी है। जितने भी हाज़रीन यहाँ पे इस तरफ बैठे हुए हैं, उनके नाम से आप तमाम वाकिफ़ हो ही गए हैं, तो मैं दोबारा उस चीज़ का इयादा नहीं करूँगा और सीधा अपनी बात की तरफ रुख करके, अगर खिराज अकीदत के लिए आज कोई जज्बा आपके सामने पेश करने को है तो मैं शुरू में ही कह दूं कि जहां आज मैं खड़ा हूं, यहां पहुंचने के लिए मुझे 60 साल की उम्र
की एक मेहनत और लगन से वाबस्तगी रखने का आज ये इनाम मिला है कि मैं आज आपके सामने आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर एक टाट पट्टी पे तालीम शुरू करने वाला तालिब इल्म 60 साल की उम्र में हौसला अफजाई पाके अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की, अपने उसातिज़ा की अगर इतनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो मैं समझता हूं इससे बेहतर खिराज अकीदत सर सैयद अहमद खान के लिए उनके सर सैयद डे पर शायद हम लोगों की रहनुमाई के लिए या जज्बे को उभारने के लिए नहीं हो सकती। ये यकीन जानिए कि मैं इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसमें कुछ शाहिद भी इस महफिल में मौजूद हैं जो मेरे भाई बहन बन के हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बात तो तवील है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको मुख्तसर करूं। कुदरत ने मुझे एक दुनियावी एतबार से जन्नत में तो ज़रूर पैदा कर लिया था, लेकिन उस जन्नत में मेरे इब्तदाई 22 साल ही गुजरे। 22 साल गुजरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर किसी मुल्क का एक टुकड़ा दुनिया भर में जन्नत के नाम से जाना जाता है तो अगर उस मुल्क की पूरी उसका सफ़र कर लिया जाए तो उस मुल्क की तारीख़ क्या होगी। तो मुझे उस मुल्क की अज़मत बुलंद नज़र आई और मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि नहीं, इस छोटे से टुकड़े को नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क को देखा जाए, देखें कि उसमें कितनी खूबसूरती नुमायां है। बेबसी के हाल में ही सही किसी पड़ोसी ने यह कहा था कि इल्म के लिए अगर कोई सफ़र घर से शुरू किया जाता है तो वो सफ़र नियामत कहलाता है। तो मैंने सोचा कि अगर सफ़र नियामत है तो उसमें दुश्वारियां भी अगर आ जाएंगी तो कोई बात नहीं। बीएससी पास करने के बाद अलीगढ़ के नाम से मैं वाकिफ था। उसी ज़माने में यहाँ से एक तालिब इल्म थे जो अलीगढ़ के थे और उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। उनका नाम था हामिद, मैंने कहीं लिखा था, बहरहाल वो चीफ सेक्रेटरी भी यूपी के हुए थे। उनके यहाँ से आईएएस में सेलेक्ट होने से पूरे मुल्क में एक अलीगढ़ की पढ़ाई का, इसकी फिजा का एक नमूना सा बिखर गया। हर तालिब इल्म जो है तालीम के जज्बे में मुलविस हो गया और उसको ये पूरा यकीन हो गया कि अगर तालीम के सिलसिले से अलीगढ़ जाया जाए तो हो सकता है ज़िंदगी किसी अच्छे अंजाम तक पहुंच जाए। मैंने भी बीएससी पास करने के बाद फार्म यहाँ भर दिया था और मैंने केमिस्ट्री में फार्म भरा था। इत्तिफाक रहा कि ये लेटर एडमिशन का मुझे देर से मिला। मैं 23 सितंबर 1985 को वहाँ से चला। शिद्दत दो चीज़ों की थी। एक, तालीम के बारे में मेरा थोड़ा सा
मेरा इसकी तरफ रुझान था, दिलचस्पी थी। दूसरा ये था कि कश्मीर से इसके बियॉन्ड, इसके बाहर जाके देखें कि भारत जिसका ये हिस्सा है वो मुल्क कैसा है, क्या वो भी कश्मीर जैसा है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास वहाँ एक बहुत ही इश्तराक का माहौल था। हम लोगों की खाने पीने की आदतें, जुबान, पहनावा बिल्कुल एक जैसा था। वहाँ कोई इम्तियाज मजहब की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे नहीं था। अलीगढ़ जब मैं आया, अलीगढ़ ने मुझे मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी। मैं बहुत मुख्तसर वसाइल के साथ आया था घर छोड़ के, लेकिन अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने, मुझे आज भी याद है कि पहली रात मेरी यहाँ वकार मुल्क हॉल में बाहर लान में गुजरी थी चारपाई पे। ट्रेन की आवाज़ मेरे लिए नई थी, मैंने पहले सुनी नहीं थी। रात को जब चली तो मैं अचानक खड़ा हो गया। जो आसपास सो रहे थे लोग, उनको ताज्जुब हुआ कि ये इस तरीके से, अजीब तरीके से उठ खड़े क्यों हुए। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने ये आवाज़ सुनी नहीं थी, मैं डर गया और अचानक मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। बहरहाल रफ्ता रफ्ता ट्रेन की आवाज़ से भी वाकिफ होता गया। एक स्टूडेंट हबीबाल के थे, कश्मीर के थे, काजी एजाज नाम था। उनने मेरे हालात को देखते हुए उनने सोचा कि मुख्तसर वसीले से अपनी जगह छोड़ के आए हैं, लिहाजा इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। वो रोज़ हमें सुबह शाम नाश्ता कराते थे और पूरा ख्याल रखते थे। जिससे मुलाकात हुई उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और अलीगढ़ का अच्छा इम्पैक्ट हमारे जहन के ऊपर पड़ा। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से वाइस चांसलर के ऑफिस तक सितंबर से दिसंबर के महीने तक जितने दिनों में, जितने महीनों में यहां रहा, रोज चक्कर लगाता था कि मेरा दाखिला हो जाए, मुझे देर हो गई है रिपोर्ट करने में। लेकिन मेरा काम नहीं बना। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने, असातिज़ा ने जो मेरे साथ सलूक किया, उसमें सर सैयद अहमद ख़ान की इस इदारे की बुनियाद रखने की जो एक बुनियादी फ़र्ज़ है, उसमें उसको पूरा करने में कोई पीछे नहीं था। बहरहाल मैं दिसंबर के महीना आ गया, थोड़ा मायूस था कि अब मैं क्या करूं, वापस जाना नहीं चाहता था। तो इत्तेफाक था कि सनाउल्लाह परवाज़ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के एक लेक्चरर थे, उनसे मुलाकात हुई। वो भी कुछ हालात से आशना होके अच्छी अच्छी बातें मुझसे करने लगे और मशवरा भी देने लगे। तो आखिर एक दिन बैठे बैठे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अलीगढ़ में दाखिला नहीं होता है तो कानून की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है, ये अगर कभी कर लोगे तो इसमें इंसान की तरक्की छुपी होती है और उसकी मंजिल बुलंद से बुलंद तक इंसान पा जाता है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि स्काई इज द लिमिट। बहरहाल कहना मुझे यह है कि अगरचे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम के एतबार से मुस्तफीद नहीं भी हुआ, यहाँ के स्टूडेंट्स ने और यहाँ के असातिज़ा ने, उन्होंने आखिर में जब मुझे ये कहा कि तुम्हारे लिए लॉ स्टडीज़, लॉ कोर्स इज एन अप्रोप्रिएट कोर्स फॉर यू, आप इसको जहाँ पे भी पा पाओ वहाँ इसमें दाखिला ले लो। दिस वॉज द एडवाइस टेंडर्ड बाय, ए सेल्फलेस एडवाइस टेंडर्ड बाय डॉक्टर सनाउल्लाह परवाज़। अगरचे मेरा दाखिला नहीं भी हुआ, लेकिन एक हिदायत यहाँ से मिली, जिस हिदायत को मैंने अपने दिल में पिरो के यहाँ से
ट्रेन में बैठा और उन्होंने ये बताया, एक आजमगढ़ के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि लॉ कोर्स जो है वो लखनऊ में देर से शुरू होता है, आप वहाँ जाएं, वहाँ फॉर्म भर लें, हो सकता है आपका दाखिला वहाँ हो जाए। मैं यहाँ से बैठा और लखनऊ चला गया। वहाँ इत्तेफाक है कि आखिरी साल था 1985, जब एडमिशन्स आपके ग्रेजुएशन के मेरिट पे होते थे। मेरा पहले लिस्ट में नाम तो नहीं आया चूंकि 5% का डिडक्शन था, दूसरी या तीसरी लिस्ट पे मेरा नाम आ गया और ये सबब बना, जो यहाँ से मुझे हिदायत मिली, जो यहाँ से मुझे एक जज्बा मिला, उस जज्बे को लेके मैं यहाँ से लखनऊ रवाना हो गया और वहाँ मुझे लॉ में दाखिला मिल गया। यहाँ की एक बात उस वक़्त मुझे थोड़ी सी बेचैन करती थी, वो था कश्मीरी स्टूडेंट्स का यहाँ आना और आपस में ही एक जगह रहना और पढ़ के वापस चला जाना। मुझे ये महसूस हुआ कुछ दिनों रह के कि ये कश्मीरी स्टूडेंट्स बाकी लोगों के साथ नहीं मिलते हैं और ये चीज़ जो है मेरे मकसद से थोड़ी सी हट के है। हो सकता है मैं वापस चला जाता, लेकिन मौका था। मैंने कहा नहीं, अगर मैं कश्मीर से निकला हूं तो मुझे अपने भारत के मुल्क में अपने लिए ये खोजना है कि इसकी बाकी की खूबसूरती कश्मीर से हट के जो है वो कितनी गहरी है। ये यकीन जानिए, पिछले 38 साल से मैं लखनऊ में हूं। मैंने लखनऊ में पढ़ाई के दौरान, वकालत के दौरान, या पिछले 10 साल हो गए मैं हाई कोर्ट में एक जज की हैसियत से काम कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता कि हिंदू बिरादरी ने कहां मुझे पनाह दी, कैसे मुझे उन्होंने पाला, कैसे उन्होंने अपने घरों में रखा और किस तरीके से मुझे मेरे काम में ऐसे आरास्ता किया कि जब मैं वकालत कर रहा था तो मेरी कम से कम 95% क्लाइंटें जो थी वो अपनी हिंदू बिरादरी की थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं मुस्लिम बिरादरी से दूर हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, इस भारत की, जिसकी वजह से मुझे ये राज पता चला कि आखिर ये हिंदुस्तान ही है, ये भारत है जिसमें अलीगढ़ जैसे इदारे की बुनियाद सर सैयद अहमद खान जैसी बहुत बड़ी जो है एक हैसियत वाले, पर्सनैलिटी वाले शख्स डाल सकते हैं। हमारे मुल्क की ये जो हट के एक इम्तियाज है कि किसी इंसान के जज्बात को वो पनाह देती है, ये मुख्तलिफ है दुनिया से। सर सैयद अहमद खान को जानने के लिए शायद उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को इतना गहराई से समझा, उनको ये बिल्कुल अंदर से डर नहीं लगा कि अगर इस इदारे के इर्द गिर्द किसी और मजहब के लोग भी जानने वाले हैं तो उनकी मर्जी का इदारा यहां कायम नहीं हो सकता। तो ये दूसरी खूबसूरती थी कश्मीर से हटके जो मुझे भारत की नजर आई, जो मुझे आज आपको पेश करने में खुशी भी हो रही है। और मैं ये समझ सकता हूं कि सर सैयद अहमद खान ने, जिनके नाम से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी जाती है, उसने भारत की इस महानता को कई गुना हम आम लोगों से ज्यादा गहराई तक समझा होगा। और इसी वजह से इस इदारे से आज बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के
हर आम व ख़ास तालीम से यहाँ पे फैज़याब है। तारीख़ी दौर बहुत मराहल से गुजर चुके हैं। तारीख़ को समझने का हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है तारीख़ को समझने का। मेरा पर्सपेक्टिव तारीख़ को समझने का हट के कुछ थोड़ा सा इस वजह से है कि मेरे जन्म और परवरिश में इतने लोगों का योगदान है कि मैं किसी की तरफ भी देख के ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अपना नहीं है या ये मेरा अपना है और वो नहीं है। अगर उस एतबार से मैं तारीख को देखूं तो मैं तारीख के एक युग को ये कहूंगा कि वो एक मौजज़ाती युग था, वो एक मौजज़ाती दौर था। उसमें तसव्वुफ के एतबार से इंसान पैदा करने वाले से इतना जुड़ा हुआ था कि उसको उसकी खुशी और नाखुशी अपने अमल में झलकती दिखाई देती थी, और जहां कहीं गलती होती थी वहां उसको इशारा हो जाता था कि आज तुमने गलती की। ये एक दौर था, और इस मौजज़ाती दौर में इस मुल्क जिसको हम भारत कहते हैं, हमने मौजज़ात के किले मैदानों में ही नहीं, दरियाओं में ही नहीं, बल्कि पहाड़ों पे भी गाड़े। ये इस मुल्क की तारीख है। अगर खुले दिमाग से, अगर खुली नशोनुमा से आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। हर चीज का एक उरूज होता है और एक ज़वाल होता है। मौजज़ाती दौर को भी ज़वाल आने में एक उम्र लगी और फिर एक फिक्री दौर शुरू हुआ। फिक्री दौर में इंसान ने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। मौजज़ाती दौर में मेरी समझ से शायद दिल का ज्यादा इस्तेमाल था, दिमाग का कम जरूरत था। मैं खासकर ये कहूंगा कि कम जरूरत था। जब फिक्री दौर आया तो फिक्र से एक नया जहान इंसान ने बसाना शुरू किया। उसने फिक्र से सही और गलत की पहचान करना उसने शुरू किया, और एक जमाना ऐसा आया कि फिक्री दौर ने मौजज़ाती दौर को दबा दिया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। एक जमाना यह भी रहा, और वो जमाना मौजज़ाती दौर के साथ साथ उसको चुनौती देते हुए चलता रहा। फिक्री दौर का दूसरा जन्म एक साइंसी दौर है, जो आज हमारे सामने दरपेश है। तो आज अगर दुनिया को हम एक खाके में समेटने की कोशिश करें तो हमारे साथ मौजज़ाती दौर की मिसालें, फिक्री दौर का वो उरूज की सोच, और साइंसी दौर का वो चैलेंज जिससे हर एक आप और हम
आज की तारीख में वाबस्ता हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक निचोड़ हमारे सामने आज मौजूद है। ज़िंदगी इन मुख्तलिफ पहलुओं पे गुज़रते गुज़रते हिंदुस्तान में भी एक तब्दीली रोनुमा की, और मैं तारीख को उससे पीछे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आज़ादी हमारे लिए एक ऐसा जंक्चर है, एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फिक्री दौर का उरूज हमें लाके एक आईन में बांध दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फिक्री दौर का निचोड़ हमारे सामने किस रूप में आज सामने है और हमारे सामने चैलेंज क्या है। फिक्री दौर के रूप ने आईन का पहला जो कलमा है, उस कलमे में यह लिखा है, वी द पीपल। ये वी द पीपल का फ्रेज जो है, ये बहुत सदियों के बाद आके इन अल्फाज में मुंजमिद हुआ है। आज़ादी के बाद हमारे पास अगर सबसे बड़ा मकसद आके खड़ा हो गया, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो इंसान, वो इंडिविजुअल है, चाहे वो किसी भी रूप में है, तो दौड़ कहां से शुरू हुई? वो एक फर्द की दौड़ आई से वी की तरफ। आज चैलेंज हमारे लिए यह है कि क्या एक इंडिविजुअल, क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या हमारी संस्थाएं इस बुनियाद को जो आई से वी का सफर है, इसमें शामिल हैं या नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आईन के इस सीगे को एक मकसद दें, हमारी यूनिवर्सिटी का इसमें क्या रोल हो, वो रोल हर आदमी अपने इम्तियाज से प्ले करे, ताकि हमारी मुस्तकबिल की जनरेशन्स जो जिनके ऊपर मुस्तकबिल ठहरा हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी हम पास ऑन करना चाहते हैं, उनको ये न लगे कि जो लिगेसी हमको मिली है उसका बोझ इतना भारी है कि जिसको हम उठा ना सकें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तालीम के एतबार से कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को ऐसा महरूम रखा हो कि वो चाहे इनफरादी तरीके से या इश्तराकी तरीके से, कि वो इस काबिल न हो कि वो अपने इन फ़राइज़ को बखूबी अंजाम न दे सके। सर सईद अहमद ख़ान की इस तकरीब में आज मुझे मौका देने का वाइस चांसलर साहब का, आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी बात को थोड़ा विस्तार से और कहना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि अगर मेरी मंजिल कभी अधूरी भी रह जाती है, लेकिन मेरी जुस्तजू ख़त्म नहीं होती है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तकरीब में आप तशरीफ लाए और यकीनन ये तारीख में रकम होता है। इस जश्न सैयद में साल दर साल
former Vice Chancellor, Jamia Islamia, retired IAS officer. आइए सर, सर सामने देखिए सर, सर इधर देख लीजिए। ओके। Thank you very much, sir, for accepting this. And एक यहाँ पे निशान पेश कर रहे हैं. And now for the succinct address. बहुत बहुत शुक्रिया और आप जनाब संजीव सराफ साहब, मोहतरमा डॉक्टर लोज बोतिया साहिबा, स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पूरी दुनिया में ईद साल में 2 बार मनाई जाती है, लेकिन अलीगढ़ में एक अलीग के लिए 17 अक्टूबर सर सैयद डे साल की तीसरी ईद बनकर आया। So today, as we gather here to commemorate the life and contribution of Bani Darsgah Sir Syed Ahmad Khan on his 206th birth anniversary, I, on behalf of the entire AMU fraternity, extend the warmest greeting of the day to all of you. At the outset, let me also express my appreciation and a deep sense of gratitude to all our guests for accepting our invitation and gracing today's occasion. Lot has been said. I think there is nothing much which I can add, but certainly, ladies and gentlemen, today is the day of celebration. Celebration of the man, his vision, his resolve, his commitment, his efforts and contributions. Whenever we speak of Sir Syed Ahmad Khan, the first thing that comes to our minds is the Aligarh Muslim University, because that is the most significant physical manifestation of Sir Syed's vision. But what misses our focus is that Sir Syed was not a philanthropist who laid the foundation of yet another educational institution. वो एक जुनूनी इंसान थे और अलीगढ़ एक मुहिम थी। उनका मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करवाना नहीं था, बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर कर दिखाना था। The educational purpose of Aligarh differed from the other colleges of the time, as it stressed on collective consciousness, a democratic point of view, and a drastic intellectual awakening. Sir Syed was a hope at a time when the morale of our community, our people, especially the Muslim community, was at its lowest. To him, hope was in strategy, and strategy was strength. A strategy of not confrontation, but of dialogue, and dialogue that is built on a wealth of knowledge and art of articulation. He wished for his students to build a thought process, to question blind obedience, to differentiate between right and wrong, to be fearless, to carry a deep sense of morality and tolerance, and have a personality whose mere appearance is commanding. Sir Syed wanted Aligarh to be an intellectual and cultural center that preserved the whole of Indian heritage. उनका मानना था कि तहजीब के बिना तालीम बेमानी होती है। अलीगढ़ सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि तहजीबी मेयार से भी किसी और इदारे से मुख्तलिफ था, अपने वक्त से बहुत आगे। And that is what it said. What Aligarh says today, India will say tomorrow. Sir Syed's commitment to social harmony, composite culture, inclusiveness, and collective growth has continued to guide AMU's
institutional conduct. Aligarh Muslim University was established with an aim of nation building, and that is why at Aligarh we strive for excellence, because we believe that in the prosperity of this university lies the well-being of its nation. We look to the nation building as a personal and serious responsibility. In the years, Aligarh Muslim University has scaled new heights. We have improved our rank to the 9th best university of the country in the NIF ranking, 3rd best in India Today ranking, and have secured 6th position in the Times Higher Education ranking. We have also been placed in the band between 600 to 800 in the Times Higher Education World Ranking, up from the earlier 800 to 1000 band. The Mathematics Department of AMU has been ranked the best in the country and has secured 137th position in the world in the US News and World Report 2023. In compliance to the new education policy 2020, the university has also introduced new programs to make the learning process more innovative and industry oriented, like cyber security, like MSc in data sciences, BTech and MTech in artificial intelligence, Bachelor of Arts in Visual Arts, 4-year integrated teaching program, ITEP, etc. While these achievements are encouraging, we are not flattered and are fully aware that this is not our full potential. In fact, Sir Syed had once said, of all the ailments of heart and most injurious is fondness for flattery. As a university with a mission, we haven't yet arrived, and we have a long way to go before we see light shining on our founder's vision. And with this awareness, we remain committed. Throughout the day, till the much awaited gala customary dinner, a lot will be discussed about Sir Syed, his personality and work. But there are 3 things about Sir Syed that I would like to highlight and bring the attention to especially of my students. Sir Syed की शख्सियत की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वो वक्त की नज़ाकत को समझने का हुनर रखते थे। दूसरी बात ये कि नज़ाकत कितनी भी सख्त क्यों ना हो, he had the ability to see opportunity in crisis and not see only opportunity in crisis but also turn the entire crisis into an opportunity. और तीसरी बात ये कि जिस चीज़ का वो यकीन कर लेते थे उसे वजूद में लाकर रहते थे. His confidence was undeterred and unshakable. आज जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं, जिस इदारे का आप हिस्सा हैं, वो सर सैयद के उस यकीन और नियत की सबसे बड़ी मिसाल है. Today's event, the celebrations, the Paris programs are our humble gesture to pay homage to the legendary founder, but our true homage would be to contextualize his vision and mission in today's time. वक्त की नज़ाकत को समझिए. Do all you can to turn the crisis you face into an opportunity. और अपने खुदा पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे यकीन करिए. मेहनत करिए अपने मुल्क के लिए, मेहनत कीजिए अपने घर के लिए, मेहनत कीजिए अपनी कौम के लिए, और सबसे ज़रूरी अपनी इंसानियत के हक़ में. और वही असल में सर सैयद को आपकी खिराज अक़ीदत होगी. When Sir Syed envisioned that you have Quran in your right hand, science in the left, and Quran yourself and crown yourself with the kalma, he wished for you to draw 3 important lessons from each for your overall emancipation. The lesson of discipline and character building from religion
rational thinking from science, and hope from the faith of one God. Dear students, I call upon you, फर्ज में अपनी इबादत गाहों को आबाद करिए. Spend your days in the celebration, the classroom and library. अपनी शामों को खेल के मैदान में and enriching the healthy debates and discussion में बिताइए, and a good sleep at night. चुंगी पे आप अपनी शामों को नहीं, अपने मुस्तकबिल को ज़ाया कर रहे हैं. And I repeat, you can't do the same thing over and over again and expect good results. If the times are challenging, your approach cannot be easy. As I conclude, let me leave you with the thought to ponder. Aligarh is an ever-living movement. Its success or failure will be determined with every successive generation and their contribution to keeping alive Sir Syed's vision. So it is on me and you to imbibe Sir Syed's ways and means of life and learning as we move forward in hope of a brighter and just future. And in this, his message at Mirzapur in 1837 is most pertinent, and I quote, "My advice to all of you is, do only what which you believe to be right, and do not do anything the rightness of which you do not believe. This is the real truthfulness, and this is the thing on which the bliss of both the world depends." Unquote. I wish you a very happy Sir Syed Day. I wish you a bright future for yourself, for your family, for the nation and the country. Allah Hafiz. से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है, रात भर चाय धुआं देर गए तक बहसें और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। तारीखी प्रोग्राम में आप सभी अहले इल्म व दानिश की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइसे सद इफ्तिखार है। हम सर सैयद डे की इस अजीम शान तकरीब में सभी हजरात के समीम क़ल्ब से ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को वक़ार बख्शा। आप जैसी अजीमुल मरतबत और बुलंद पाए मारूफ शख्सियात की शिरकत से आज का ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। आप सभी हजरात हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लाए। हजरात, आपने सर सैयद की अजीम शख्सियत पर हमारे फाजिल स्पीकर प्रोफेसर आयशा मुनीर रशीद, प्रोफेसर तौक़ीर आलम फलाही और तलबा की तकरीर समाअत फरमाई। हम सब उनसे फैज़याब हुए। इस मौके पर सर सैयद के हवाले से मुझे ये शेर याद आ रहा है, लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, मुफस्सिर, मुस्लिह, तारीख़दा, सहाफ़ी और कसीरुल जिहाद शख्सियत के मालिक थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक अजीम तालीमी मुदब्बिर थे। बाकी मानदा काविशें उनकी शख्सियत के ज़ैली अक्स करार पाए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अदबी रिसाले तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी और फ़िक्र नज़र के एडिटर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम के भी शुक्रगुजार हैं, जिनकी काविशों से हर साल सर सैयद पर खुसूसी शुमारे शाये होते हैं। इस अज़ीमुश्शान तकरीब को कामयाब बनाने में हमारे सरपरस्त शेखुल जामिया जनाब मोहम्मद गुल्ले साहब, रजिस्ट्रार जनाब मोहम्मद इमरान साहब, फाइनेंस ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान, गेम्स कमेटी के सेक्रेटरी प्रोफेसर अमजद अली रिजवी, पंडाल कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर एफ.एस. शीरानी के साथ कमेटी के सभी अरकान और परचेज कमेटी के अरकान, प्रोफेसर वसीम अली और उनकी टीम, MIC गेस्ट हाउस डॉक्टर जमील अहमद, लैंड्स एंड गार्डन के MIC प्रोफेसर जकी अनवर सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर रज़ा आब्दी और उनकी टीम, MIC बिजली प्रोफेसर रेहान और उनके रुफ़क़ा, यूनिवर्सिटी इंजीनियर प्रोफेसर नदीम खलील और उनके रुफ़क़ा, लाइब्रेरियन प्रोफेसर निशात फातिमा और उनकी टीम, डायरेक्टर सर सैयद एकेडमी प्रोफेसर सैयद अली नकवी, डायरेक्टर कुरानिक सेंटर प्रोफेसर अब्दुल रहीम बिदवई, प्रेसिडेंट राइडिंग क्लब डॉक्टर बासित मोहम्मद अली, PRO उमर पीरज़ादा और मीडिया के लोगों के साथ हमारी यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफर अज़हर अब्बास के भी ममनून हैं। डॉक्टर शाहरिक अकील और डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी ने
बहुस्न खूबी प्रोग्राम की नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। राइडिंग क्लब और AMU तराना टीम के तलबा भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। इन सभी हजरात की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आप सभी के ताउन से आज की शानदार तकरीब बुलंदियों तक पहुँची और कामयाबी से हमकिनार हुई और अख्ताम को पहुँची। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आखिर में आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये शेर आपकी नज़र करता हूँ। इस मरकज़ ज़बान में आने का शुक्रिया, इस मरकज़ ज़बान में आने का शुक्रिया, तादेर अपना साथ निभाने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। के क्लासेस आप लोग आज आराम से खूब डिनर सेलिब्रेट कीजिए और कल आराम कीजिए, परसों आप लोग क्लास।
अब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सदियों का सर सैयद ने कर दिया, सदियों का सर गाड़ी पे मैडम और आज रेडी केक और ले लेते हैं। किसी गलत फहमी नहीं लग रहा। वर्मन जी हाँ हाँ मैं बता रही हूँ तो बहुत दिल्ली में, लंदन में, दुबई में। अब एक शहर और बढ़ा दी। आई हैव एन राइट हम तो मुसाफिर हैं, कभी लखनऊ कभी बस्ती कभी माशाल्लाह। तो where did you go?